She'll have some introductory questions, and then all of us will chip in with whatever questions you have. Okay. Thank you so much. Sir, I've told everybody that you're a keen type person and there is no exam that you have written and you did not score rank more than single digit. So your journey has been like it's a cosine wave, doing BSc, then going into research, and then doing research, pursuing PhD, then giving services ka exam, and then choosing between different variety of things, because you told me that you have had multiple options to choose and pursue a career in a particular field, but you chose IFS wala cheez. How did that decision come? What were you thinking? What were the difficult choices that you have had for yourself? What answers were you seeking while making choices? Because career choices is something that we mostly struggle with. क्या करना है? ये भी अच्छा लग रहा है या इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी हम अच्छे हैं. So that happened with you, like that you are a real life example of it. And then you chose one thing and now you have been doing it for quite some time. How did that happen? Basically, to answer this thing, I'll say, and it happens with each and every one of us. The thing is that in general, what happens is that your career and your life choices, now they are determined by a lot many factors. It is not just you who determines it. In fact, you'll find that societal pressures or societal norms. Then you'll also find that, okay, nowadays, say, there are a lot many options. Like one guy among you probably has appeared for CVE exam also, and he has cleared the prelims. So the thing is, to get a decent government job, you keep on trying. But there are also certain things attached with it, like your family pressure, the peer group pressure, and in fact pressures from all around. Okay, this is a job that will give me a respectable position in the society, this particular kind of job. Because it is not that it is just the pay these days, because in fact private sector is offering a lot much pay, a lot better pay, a lot better lifestyle which like the younger generations, the Gen Z can associate with. So for these kind of decisions, a lot many things come in place and then you take a decision. So as such, to ascribe specifically that, okay, why did I enter IFS? I cannot say, because probably in our previous interactions also I told you that the word motivation or the word passion that many say, okay, I'm passionate about this field, so I want to enter into this. Passion is not a pre-given thing. Passion always comes when you start doing some kind of work. You feel you have some knowledge about it. During the course of execution of that particular work, you gain some additional knowledge. Then you succeed in it, and your success ratios are better than your failure ratios on that work. And then in due course of time, passion develops. So passion, if somebody says, okay, I'm passionate about this field, I'm passionate about coming into the Indian Forest Services. While I made this the decision to come to the Indian Forest Services, so that is not the case. The thing is that, okay, I wanted a position where I can deliver something good, be it any field. I wanted to be in a place where I should have some authority to bring about some effective change. So like the civil services, they do provide you an option, they do provide you a chair where like you can effectively take decisions that can influence a lot many things. So that decision making, what the civil services offered, that made me inclined towards coming to the civil services. And basically, truly saying, I was mostly preparing for the civil services component. So the component in which you get those 24 services, and not the IFS per se. So I was clearing this prelims component of the Indian Forest Services also, but I never appeared for the mains component. So the first time I appeared for the mains component, that time I cleared the IFS. And I would also say, like very clearly, like had I cleared the civil services exam component, I wouldn't have come into the Indian Forest Services. So, like
I think life per se offers you chances, it gives you good chances. You should be prepared for it. Whenever that chance comes, you should be prepared. It shouldn't happen that probably like you were not prepared and then you couldn't avail the benefits of the chance that life has to offer. So the thing was that for me, ultimately it was, okay, I was appearing for examinations, I wanted to come to the civil services examinations, and finally I cleared this IFS and I entered into the IFS side of the civil services. So could you tell everybody, sorry to interrupt, I remember you told me that there was some department that was to be given to you to head at ICR when you were there. And basically that story falls like I had been, if inherently I was interested in one thing in my life, it was research. Like truly saying as a career option. The thing was, I was interested in research. I didn't know where, in which institution I will land, but I always wanted to explore new things. The curiosity component was a lot inside me, so I always wanted to be in the research field. While I was doing my PhD in the Indian Agricultural Research Institute, PUSA Institute, Delhi. So in that institute, सर पूसा का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए. पूसा का कॉन्टेक्स्ट अभी इनके लिए समझना जरूरी है कि पूसा सच में बहुत बड़ी थी. अच्छा, क्योंकि आई डोंट थिंक पर्सनली कि पूसा के बारे में लोगों ने सुना होगा, ऐसा मेरा मानना है. एंड पूसा का स्टेचर समझना जरूरी है ये समझने के लिए कि आपने किस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा. नहीं, अगर एक्चुअली क्या होता है कि जब हम छोटी सी चीज होती है जब हम एग्रीकल्चर की फील्ड में बात करते हैं ना, तो समहाउ इट इज़ लाइक कि ओके अब खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में आदमी क्या पढ़ेगा और इस तरीके की चीज़ें एक थोड़ा सा इनसे थॉट आता है. जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं आपको एक इंस्टेंस ये बताता हूँ कि मेरे जो नाना साइड हैं उनके यहाँ काफ़ी ज़मीनें हैं, खेती वगैरह होती है. सोयाबीन की बुआई चल रही थी, तो उसमें बेसिकली मैंने बस ये कहा कि आप कुछ ये चीज़ें कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा. तो मेरे मामा जी थे, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम 4 किताबें पढ़ के आ गए हो और हम यहाँ ज़माने से खेती कर रहे हैं, तुम हमें सिखाओगे कि खेती कैसे होती है. ठीक है. सो एग्रीकल्चर इज समथिंग जो थोड़ा सा बहुत ही हाई मीनिंग नहीं देखा जाता इन आवर कंट्री. इट इज़ समथिंग कि हाँ यार वो तो हर कोई कर सकता है. तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर के कॉलेजेस, एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते. बट ये है कि आप लोग MS स्वामीनाथन को जानते होंगे, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री. MS स्वामीनाथन एल्यूमनाई थे IRI के, ठीक है. आपने हरगोविंद खुराना का नाम सुना है, ठीक है, नोबेल लॉरेट, क्योंकि उन्होंने जो DNA जेनेटिक कोड था, तो जेनेटिक कोड में कंट्रीब्यूशन था उनका. US में आई थिंक इस यूनिवर्सिटी में थे. Hargobind Khurana tried 7 times to get into that institution. He couldn't. And then finally he went to US. ठीक है. And you have studied there. So I've studied there. So you have to. So this is the person you're meeting. So and the This is the context. And the other thing is that in fact in that institution in various departments only 4 or 5 wards are admitted every year. 5 बच्चे per साल. That's it. Per साल. किसी डिपार्टमेंट में 5. एक कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? डिपार्टमेंट 20 है उसमें. तो आप 20 into 5 is like 100. 100 नहीं, लेकिन जो उसका एग्जाम होता है वो सब्जेक्ट ग्रुप्स का एग्जाम होता है. मतलब उसमें एग्जाम आप जब देते हैं तो हर 2-3 डिपार्टमेंट्स क्लब होकर एक सब्जेक्ट ग्रुप बनाता है. जैसे मेरा जो सब्जेक्ट ग्रुप था वो ग्रुप A कहलाता था. उसमें आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी था, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स था, प्लांट फिजियोलॉजी था. ये 3 डिपार्टमेंट्स उसमें आते हैं. तो जो एग्जाम होता है और एग्जाम पेपर होता है हर ग्रुप के लिए अलग होता है. और उस पूरे ग्रुप में अगर आपकी जैसे ऑल इंडिया रैंक बियॉन्ड 5, 6, 7 चली जाती है तो यू डोंट गेट एडमिशन इन 5, 6, 7 के बाद सिलेक्शन नहीं होता. I got rank 7. So and उस साल मैं थोड़ा सा इस वजह से भी लगी था कि वहाँ पे थोड़ा सा ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कुछ रिजर्वेशन वगैरह की सीट्स भी होती हैं, तो few people who cleared ahead of me
Now they were OBC candidates, so they took OBC seats. अच्छा. Had they taken the general seats, You would not तो have- फिर 7 rank, all India rank 7 पे भी I couldn't have gotten any of the 3 departments. ठीक है, I got one of the department because ये हुआ, मतलब मुझे वो 3 डिपार्टमेंट में जगह नहीं मिली. PhD में भी यही होता है उसमें. PhD में भी 4 या 5 कैंडिडेट. आपकी PhD भी वहीं से? मेरी PhD में से. PhD का ऑल इंडिया, उसमें ऑल इंडिया रैंक आती है मेरी, तो मेरा तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी. So now लेकिन- back to your research वाला part हाँ. that you got offered. So the thing was कि मैं मास्टर्स गोल्ड मेडलिस्ट था वहाँ से, और माय गाइड इन मास्टर वाज आल्सो माय गाइड फॉर PhD. और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे विश्वनाथन सर थे, वन ऑफ द यंगेस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एनी सेटअप इन द कंट्री. 44-45 के थे, एंड साइंस और नेचर वगैरह पब्लिश किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा. सो ये था कि वहाँ एक फिनोमिक्स लैब स्टैब्लिश हो गई. फिनोमिक्स जो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक जेनेटिक कंपोनेंट है, हमारा एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होता है, तो वो जो भी कुछ निकल के आता है, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, दैट इज द फिजिकल कंपोनेंट. सो दैट इज फिनोमिक्स. उसकी स्टडी को फिनोमिक्स कहते हैं. तो आजकल उसका बहुत ज़्यादा वो है कि मान लीजिए आपको ये पता करना है कि कोई वैरायटी ड्राउट है, टॉलरेंट है, मतलब कम पानी में भी चल जाएगी, हाई टेम्परेचर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारी कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हमें अच्छी ही दे सकती हैं. ठीक है, तो इनका जो असेसमेंट है, एक असेसमेंट तो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगा. आपको सारे रिसर्च में पौधा लाना पड़ेगा, उस पौधे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फिर उससे जो भी उसके एनालिसिस आप कर सकते हैं, चाहे आप उसके जेनेटिक एनालिसिस करें, आप उसके केमिकल एनालिसिस करें. दूसरा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स भी है. नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड में सिर्फ आप रिमोट सेंसिंग और इस टाइप के उस मेथड से भी आप एनालाइज कर सकते हो. तो ऐसे में आप बहुत ही लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड में जो क्रॉप्स लगी हुई हैं उनका भी आप एसेस कर सकते हो, जो भी उसका फिजियोलॉजिकल वो है. तो ये वर्ल्ड क्लास फिनोमिक्स लैब थी, एंड माय गाइड वांटेड मी टू हेड दैट लैब हियर इन आफ्टर, कि भाई ठीक है, आई शुड कम जॉइन IRI लैब. एंड उसके बाद खैर वो मुझे एक एग्जाम देके ही करना पड़ता. आई क्लियर्ड ऑल्सो दैट एग्जामिनेशन साइंटिस्ट का. लेकिन ये था कि दे वांटेड मी टू कम बैक एंड हेड दैट. जब मेरा IFS में हुआ, मैं सिविल सर्विसेज लिख रहा था, तो एक्चुअली क्या हुआ कि पहले 1-2 बार जैसे मेरा CSE में हुआ नहीं IFS, तो मैं मेंस लिख ही नहीं रहा था. जब 1-2 बार नहीं हुआ तो दे थॉट कि हाँ ठीक है, इसका नहीं होगा. यही रहेगा. सो ये चीज जो हुई तो ठीक है. फिर सडनली क्या हुआ कि हो गया मेरा सिलेक्शन, तो मैंने कहा कि सर मुझे वहाँ ज्वाइन करना है. एंड ही वाज सो अनॉयड. पहले तो उन्होंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी कि क्या जाओगे, क्या करोगे तुम वहाँ पे, मतलब तुम रिसर्च ओरिएंटेशन पे हो, आदमी परेशान होते रहते हैं उसमें, और इस टाइप की जॉब है, मतलब खुल के जो भी कुछ करना चाहते हो वो तुम नहीं कर सकते यहाँ. वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे स्कोप तुम्हें अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने मुझे कही. लेकिन फिर फाइनली मैंने कहा कि नहीं सर, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, घर में भी ये कह रहे हैं और ये हो जाएंगे. तो ही वॉज वेरी फ्यूरियस. और फिर कुछ दिनों तक तो हमारी बातचीत ही एकदम से मतलब बनी, और ये वो थीसिस भी सबमिट करनी थी फाइनली. उसमें भी ये जो डिसीजन आपने लिया उस समय, जहाँ पे इतने साल का आपका रिसर्च बेस्ड और एक विजन जो आपका खुद का था, वर्सेस शिफ्टिंग टू समथिंग वेरी न्यू, ये डिसीजन मेकिंग कैसे था, और व्हाट वेड इन फेवर ऑफ IFS दैट डिड नॉट वेड इन फेवर ऑफ IRI? अब मैं वो वहाँ वाली वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में कही है कि लॉट मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस एट दीस टाइम. ठीक है, अभी जैसे ये है IRI में साइंटिस्ट, हु नोज यू आर अ साइंटिस्ट इन IRI. ठीक है, आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बिकॉज आप तो अपने काम में लगे रहते हैं. लेकिन उसके अलावा फिर बाकी जो भी हैं सराउंडिंग्स आपके हैं, वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है. और ये जो पीयर प्रेशर होता है, ये जो फैमिली प्रेशर होता है कि यार UPSC क्लियर किया बंदे ने, ठीक है, मतलब वहाँ पे तो बात ये आ जाती है कि किसी तरीके से बंदे UPSC क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, एंड एक्चुअली ये हमेशा कहा जाता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ठीक है, जो बाहर है उसे इस तरफ का नहीं दिखाई देता, उसे तो बस यही लग रहा होता है कि व्हाट एन ऑसम प्लेस दैट बंदा इज सिटिंग. ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जब एक साथ कल्मिनेट होती हैं ना, देन आपके डिसीजंस, लाइफ डिसीजंस होते हैं.
ठीक है, लाइफ डिसीजंस में एक आपका डिसीजन होता है, बट ओके यू आल्सो थिंक अबाउट अ लॉट मेनी थिंग्स। आपकी सराउंडिंग, लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में कहाँ सोच रहे हैं, उनके लिए क्या है। एक बार मैंने कमांडेंट का भी क्लियर कर लिया था, वो मैंने बताया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, उसमें CSE लिख रहा था तो उसी के सामने ये भी लिख रहा था, तो ऑलमोस्ट इसमें भी हो जाता। द डे आई वाज गोइंग फॉर द SSB, माय देन फ्रेंड सेड, माय फैमिली सेड, अब यार तुम बंदूक चलाओगे ठीक है, तो ओके, मतलब मैं उस दिन सोने गया, तब तक तो यही था कि सुबह उठ के जाना है मैं सुबह उठ गया, ठीक है, पर उसके बाद ये है कि ठंड का टाइम था, बढ़िया ठंड का टाइम था, और इधर से इतनी सारी चीजें आ चुकी थी, तुम बंदूक ही चलाओगे मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ कर तुम्हारा ये काम रह गया कि तुम बंदूक चलाओगे ठीक है। तो ये करते करते सुबह जो है, सुबह फाइनली मैं उठा हूँ, ठीक है, बाकी आई गॉट रेडी एंड देन आई अगेन वेंट बैक एंड सेड अब नहीं जाता ठीक है। तो दिस वाज द डिसीजन, मैं चला जाता अगर उस समय तो फिजिकली फिट ही था, बाकी सारी चीजें थी, मतलब अगर ड्रास्टिकली कुछ गलत नहीं होता, ठीक है, तो मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में हो जाता, क्योंकि मार्क्स बहुत थे, ठीक है, उतने सारे मार्क्स होते तो आई कुड हैव गॉट अ रैंक आल्सो। लेकिन वही है कि वहां पे आपका एक डिसीजन था, आप कहेंगे कि यार हाउ डिड यू थिंक कि भाई वाई कि आपको CAPF में क्यों नहीं जाना था, तो मैं वही बता रहा हूँ, उस समय क्या है कि इतनी सारी चीजें एक साथ आके कल्मिनेट होती है ना वो दिमाग में, मतलब बैक ऑफ द माइंड में, फिर वो जो अंतिम पुश चाहिए रहता है कि फाइनली चले जाओ। एक आदमी ने भी मुझे उस दिन बोल दिया होता कि चले जाओ तो मैं चला जाता। एक भी बंदा जिसको मैं जानता था, एक ने भी नहीं बोला, ठीक है, एक भी बंदे ने नहीं बोला। जब मैं IFS किया था कि मैं IFS का प्रीलिम्स तो निकाल रहा था, प्रीलिम्स के बाद मैं मेंस क्यों नहीं लिखने जा रहा था, मैं मेंस इसलिए नहीं लिखने जा रहा था कि समहाउ वहाँ जो और लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जिनसे बातचीत होती थी प्रिपरेशन के दौरान, यार अब तुम जंगल में जाके काम करोगे सो हमें कई बार एहसास नहीं होता है, पर ये जो सटल इंटरेक्शंस होते हैं या इस तरीके की कोई ना कोई बातें कही हुई होती हैं, दे वे इन व्हेनेवर यू टेक अ डिसीजन, ठीक है। आई थैंक ऑलमाइटी कि मुझे ऑप्शंस मिले, ठीक है, हर किसी के पास ये ऑप्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भाई कहीं नहीं हो रहा, अब ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ही जाना है, वरना सरकारी नौकरी और कहीं नहीं मिलेगी, तो वहां पे क्या है कि वहां पे इस तरीके की बातें नहीं आती। बट व्हेनेवर यू हैव टू सिट एंड टेक अ डिसीजन, ऐसी बातें जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रही होंगी ना कि वो बिल्कुल फिजूल की बात है, यार ये क्या बात कर रहा है, ये कैसी बात कर रहा है, यार अभी ये डिस्कस नहीं करना तुम, यार ये सब बातें हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन आप उस समय देखोगे जिस तरह डिसीजन ले रहे होगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं, और ये वही वाले इफेक्ट्स हैं। उस समय CSE मेरा 2 बार नहीं हुआ था, ठीक है। CSE में भी मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर मेरा सब्जेक्ट था, मैं IRI में पढ़ रहा था, फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में इतने गंदे नंबर आए थे, इतने गंदे नंबर आए थे मेंस में कि मतलब मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ है कि मुझे उतने वैसे नंबर में, ऐसा था कि वो साउथ चली गई, वो कॉपी हो, अरे कहीं भी चली गई लेकिन मैं एक चीज वो बता रहा हूँ कि वन ऑफ दी वर्स्ट मार्क्स दैट आई हैव रिसीव्ड, ठीक है। आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट होता है, उस टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो पता होता है कि हाँ यार थॉट प्रोसेस सामने वाले का कुछ अलग होगा। साइंस में तो यार जो है वही है, ठीक है, बट उसमें भी वन ऑफ दी वर्स्ट मार्क्स आई गॉट, और उस वजह से इंटरव्यू में बहुत अच्छे मिले, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें देखा अपना क्या कहते हैं, जब शुरू में लग रहा था कि सब में बढ़िया आया होगा, इंटरव्यू क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ड्रास्टिक टाइप का हो गया था, मुझे लगा इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेंगे, बाद में इंटरव्यू में ऑलमोस्ट अमंग दी हाईएस्ट ऑल इंडिया मार्क्स, ठीक है। ये एग्रीकल्चर में इतने गंदे नंबर थे कि सोचो आपको 1/3 मार्क्स मिल रहा है, मतलब इन जनरल में अगर स्कूल कॉलेज में होता तो मैं पास नहीं होता, सप्लीमेंट्री है ऐसे नंबर आए थे,
सो व्हेनेवर हमारे ये सारे क्वेश्चंस और ये सब होते हैं तो इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं और डिसीजंस हमेशा ऐसे ही रहते हैं कि उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं एक साथ आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ आपने दोनों तरफ का देखा है, आप एक नॉर्मल कॉमन इंसान भी रहे हैं जिसने नॉर्मल चीजें भी की है, नाउ यू आर एन ऑफिसर, जो बहुत सारे हम इंडियंस की ड्रीम होती है कि भाई ऑफिसर बनना है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप कैसे डिफरेंस देखते हैं, मतलब हाउ, कभी तो आप बैठ के सोचते होंगे ना कि योर लाइफ पहले जब आपने IAS क्वालिफाई किया और अभी जब आपने क्वालिफाई कर लिया, what are the differences, what are the things that you like about either side and what are not so good things in, आप जो थोड़ा बहुत बदलना चाहते हैं, जो आपकी यहाँ की सीखें यहाँ पर काम हुई, आप बैठ के जब एक प्रोज एंड कॉन एनालिसिस तो मेरे ख्याल से हर कोई करता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि प्रोज एंड कॉन एनालिसिस करने का आपको टाइम नहीं मिलता है। ओवर दिस साइड यू डोंट गेट टाइम, यहाँ समय नहीं मिलता है। मतलब आप बैठ के ये नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिससे आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक तरीके से वो इतनी उलझ गई है प्रॉब्लम या उलझी हुई मिली है आपको प्रॉब्लम, तो उस स्टेटस में क्या होता है कि वहां पे ये फ्रस्ट्रेशन आता है। तो जिस बंदे ने कुछ और नहीं सोचा, उसने यही सोचा, उसके लिए तो वो नहीं रहता है। पर उस समय कई बार ये थॉट आ जाता है कि यार ये साइंटिस्ट ही बढ़िया था। ठीक है। और दूसरा क्या रहता है कि वहां पे लाइफ प्रॉब्लम्स बड़ी सिंपल होती हैं। लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं और मैनेजमेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करनी है चीज़ें। मैनेजमेंट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू दिस साइड। सो चाहे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, भाई वही ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए काम करेगा, ठीक है। अब मैन मैनेजमेंट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ये आप ये सोचें कि भाई ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी लाइक एवरीवन बढ़िया पढ़ लिख के आए हुए हैं, आपके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब यू वांट देम टू डू अ थिंग लाइक दिस, ठीक है, बट नहीं, उनको किसी और तरीके से ही वो करना है। फॉर एग्जांपल, मतलब ये शायद एग्जांपल से थोड़ा सा नहीं, एग्जांपल्स क्या है कि फिर टिपिकल मतलब ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि हमें कोई एक एरिया दे रखा है जिसे हमें प्लांटेशन करना है, जैसे, ठीक है। अब उसके बाद एक बेसलाइन तो हर किसी के पास रहती है कि भाई ठीक है, इस एरिया में ये स्पीशीज पाई जाती है, ये स्पीशीज आपको लगानी है वहाँ प्लांट्स की, ठीक है। वहाँ ऐसे मैनेज करना है, इसको वैसे मैनेज करना है, गड्ढों के साइज इतने होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी लाइन में स्टेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, ये सारे सेट पैरामीटर्स हैं। फिर ये बात आई कि यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी ऐसी है, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा 50 हेक्टेयर का एरिया है, तो पूरा होमोजेनियस तो होगा नहीं, कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। उस बेसिस पे आपको स्पीशीज सेलेक्ट करना है, मुझे वहाँ वो लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है। अब जिस पोजीशन पे मैं बैठा हुआ हूँ, इस पोजीशन पे आई कैन नॉट माइक्रो मैनेज एवरी 50 हेक्टेयर प्लॉट, क्योंकि हर साल मान लीजिए हम 3,000, 4,000, 5,000 हेक्टेयर में प्लांटेशन करें, आई कैन नॉट माइक्रो मैनेज। मतलब मैं एक बार जा सकता हूँ, वहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कि यस ये इन सेक्शंस पे आपको ये लगाना है, इधर ये लगाना है, इधर ये लगाना है, अडॉप्ट अ थंब रूल कि हाँ ये है। अब मान लीजिए फाइनली एक दिन आप जाते हैं कि हाँ यार मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, बिल्कुल काम वैसा ही हुआ होगा। या फिर कभी ऐसा हुआ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी वो प्रॉब्लम्स हो सकता है उन्होंने नहीं देखी, और उन्होंने कोई गलत स्पीशीज गलत जगह लगा दी, जैसे शीशम लगाना है। अब शीशम उन्होंने ऐसी जगह लगा दी जहाँ थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो, तो शीशम के नॉट टॉलरेट वाटर, वो वाटर ब्लॉगिंग टॉलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उन्होंने लगा दी, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यार यहाँ पानी भी इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, वो उन्होंने वहाँ लगा दिया। अब एक दिन मैं खुश होकर गया कि 50,000 पौधे लगाए हैं, तो 50,000 पौधे बिल्कुल वो होंगे जो अननोन कॉजेज की वजह से कुछ खत्म हो गए होंगे, तो मे बी आई गेट अ सर्वाइवल ऑफ 98%, ठीक है। वहाँ पहुँचा तो ये है। और वहाँ पे जब आप देखते हो तो वहाँ पे आपको इस सिनेरियो समझ में आता है कि यार ये चीज़ों के लिए तो मैंने इन्हें मना किया था, फिर भी वो चीज़ें हो गई, और उस वजह से एक तरीके से जो आप चाह रहे थे रिजल्ट्स, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए, ठीक है। अब इसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ठीक है, या तो आप उस चीज़ को सुधारो, बट द अदर थिंग इज इनसबऑर्डिनेशन। यू आर एन ऑफिसर, इज योर सबऑर्डिनेट, आपने कहा, आपने इन राइटिंग भी लिखवाया वहाँ पर, बट ही डिडंट, तो अब आप उसके खिलाफ
इनिशिएट सम एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। तो इस टाइप का ये रहता है कि बट सो मच बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस भी आप लेने लगोगे तो फिर काम किससे करेंगे, ठीक है। तो दैट वे इट इज ऑल अबाउट, मतलब आप हर बार कभी इधर कुछ मैनेजमेंट चल रहा है, कभी इधर कुछ मैनेजमेंट चल रहा है। और एचआर मैनेजमेंट का मैंने श्रुति को भी बोला था कि मतलब इफ यू आर गुड एट एचआर मैनेजमेंट, ठीक है, यू आर 50% वर्क इज डन। बाकी वो सब जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो इनपुट्स हैं, जो साइंटिफिक इनपुट्स देने हैं, ये देने हैं, वो देने हैं, वो सब होते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके एक्सपीरियंस में एज समबडी हु इज गेटिंग द वर्क, जैसे हमारे भी सबके ऑफिस सेटअप्स हैं। अब आपके सीनियर ने आपको बताया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस में किसी से कहा कि यू नीड टू डू दिस थिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। हम तो बहुत छोटे लोग, वी हैव अ लार्जर टीम एंड दैट थिंग, वो काम वैसा नहीं होता एंड इट्स गेट डन जो भी आप बता रहे हो इस तरह। व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? एंड देयर आर टू अप्रोचेस, वन इज अ प्यूनिटिव अप्रोच, अदर इज अ यू टीच द पर्सन एंड दे होप कि अगली बार वो ग्रो करेगा। Which you have tried and which has worked more? नहीं, ये है कि जो हम लोग की पोजीशन होती है, हम लोग की पोजीशन में हमें हर तरीके के अप्रोच करने के मौके हर दिन मिलते हैं। इतने तरीके के वो होते हैं, इतने तरीके के काम चल रहे होते हैं किसी भी समय से इन अ डिस्ट्रिक्ट कि हमको हर दिन मौके मिलते हैं कि यार इसके साथ ये वाला अप्रोच, इसके साथ ये वाला अप्रोच, इसके साथ ये वाला अप्रोच, इसके साथ ये वाला अप्रोच। तो मतलब ये है कि 2-3 साल के बाद जो है, जैसे बीइंग द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हेडिंग अ फॉरेस्ट डिवीजन, तो उसके बाद आपके पास करीब 300-400 का स्टाफ रहता है और ये सब। फाइनली क्या होता है कि विद इन 2-3 ईयर्स प्रोबेबली हर तरीके का अप्रोच वो हो जाता है। वहाँ पे फर्क इस चीज़ का पड़ता है कि the kind of people you are or the kind of people always depends on the region in which region you are. जैसे मैं अगर इधर बुंदेलखंड की थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ पे जो है स्टाफ, जो खासकर लोग इधर के हैं, और फिर मैं अभी जैसे इससे पहले हरदा में था, सो वहाँ का स्टाफ है, तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है और ये सारी चीज़ें हैं कि भाई ठीक है, आप मतलब अगर मैं कुछ करेक्टिव मेजर्स बता रहा हूँ तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी, कितना रेजिस्टेंस आएगा, कितना एक्सेप्टेंस आएगा, ये आपका एरिया वाइज वेरी कर जाता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि जैसे ही हम अपना ये फील्ड पोस्टिंग्स पूरा कंप्लीट करते हैं तो हमें इतना वाइड एक्सपीरियंस हो जाता है, तभी तो फाइनली क्या होता है कि हम पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग में हमें बैठा दिया जाता है। बिकॉज हमने हर चीज़ करके देखी, हमने ये देखी कि ओके ठीक है, मैं स्टाफ का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, स्टाफ के भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, कई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्टाफ जो आपको मिलता है, आपका लोअर स्टाफ, हम तो 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, फिर द नेक्स्ट गाय विल कम, लेकिन जो स्टाफ है वो तो अमूमन जनरली वहीं पे रहता है। तो स्टाफ के वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो ये रहे कि भाई ठीक है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट the thing is that you have to solve my problem, and my problem is that I want to get the work done timely, ठीक है, in a proper manner, और उसके रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कितनी ट्रेनिंग है, कितनी बार पूछना है, कितने बार आपको चर्चा करनी है आपस में, आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, आप कहोगे मैं वहाँ पे आके इन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूँगा ऑन फील्ड, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो कई बार इधर से इस तरह की चीज़ें आप करो, तो ऐसे में भी कई एरियाज हैं जहाँ मैंने काम किया है, कोई रिस्पांस नहीं आता है उधर से, ठीक है, बट एटलीस्ट उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ जगह का स्टाफ बहुत ही अमीनेबल है, लेकिन ये मैंने हमेशा देखा है कि जिन एरियाज में इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, जो प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है, सब चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, उन एरियाज में डिफिकल्टी कम होती है। जिन एरियाज में इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड नहीं है, और इंस्टीट्यूशन के लिए मैं कोई फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, institution per se means the work-wise institution, the institution of a DFO, the institution of a range forest officer, ठीक है, the institution of a forest guard, ठीक है, और the institution of a forester। ये जो institutions हैं जहाँ पे ये बने हैं, जहाँ इन्होंने historical traditions ये follow करते आ रहे हैं, वहाँ problem कम है। लेकिन जहाँ पे institutions erode हो गए हैं, चाहे किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे हम ही लोगों ने, हम जैसों ने ही ध्यान नहीं दिया,
वहाँ पे जहाँ इंस्टीट्यूशन से रोड हो जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे आप कोशिश ये करते हैं कि इंस्टीट्यूशन को वापस स्टैब्लिश करें। जब आप किसी सेट नॉर्म को फिर से चेंज करने की कोशिश करते हो, जो चीज़ ढाबा चला रहा है तो फ्रिक्शंस होता है। तो वो मतलब वैसा होता रहता है कि पर डे फॉर अस इज एन एक्सपीरियंस हियर। वहाँ पे क्या है कि हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम क्योंकि डील ही नहीं कर रहे होते हैं व्हेन ऑन दी अदर साइड, ठीक है। तो वहाँ पे द थिंग्स आर सिंपल, रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि वहाँ पे जनरली आपके डिसीजन से बहुत ही छोटी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। जैसे आपको इफेक्ट करेगा मेनली, आपके पीयर को हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को इफेक्ट करेगा, आपके पेरेंट्स को। वहाँ आपका कोई भी डिसीजन, यहाँ आपका डिसीजन क्या करता है कि यहाँ आपका डिसीजन बहुत ही वाइड एरिया को इफेक्ट करता है। यहाँ आपके डिसीजंस पे ये भी फर्क पड़ सकता है कि आपका डिसीजन कोई एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर दे और वो भविष्य के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। यहाँ आपके डिसीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशंस बना दें या इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके से ही खत्म कर दें, ठीक है। यहाँ तो इन उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद फाइनली आप डिसाइड करते हो। तो उसके लिए दिन भर और जितनी प्रॉब्लम्स और वो आती हैं वो कम रहता है। सो टाइम यहाँ नहीं मिलता। तो इस तरफ आप आएंगे तो इसी ये प्रोबेबली सेटअप ही ऐसा बना रहता है कि आपके पास चीज़ें ही इतनी हैं, आप बम्बार्डेड इतनी सारी चीज़ों से हैं कि अल्टीमेटली आपके पास समय ही नहीं है सोचने के लिए कि यार मैं पुरानी लाइफ कैसी थी या खराब। वो बस ये होता है कई बार कि ये लगता है कि जब काम नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि एज अ साइंटिस्ट, हैड आई बीन अ साइंटिस्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स मेरे होते, कंट्रोल मैं कर रहा होता, हर चीज़ मैं ही कंट्रोल कर रहा होता। और देखो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले बंदे होते हैं ना, रिसर्च वाले, रिसर्च में सबसे पहला चीज़ ही ये होता है कि यू कंट्रोल थिंग्स, ठीक है। मान लीजिए मुझे इफेक्ट देखना है, पानी कम है तो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करूँगा, सिर्फ पानी वेरिएट करूँगा, किसी में कम पानी किसी में ज़्यादा पानी, मतलब कंडीशंस वेरिएट करूँगा, बाकी सबको मैं कंट्रोल करूँगा। तो हम उधर कंट्रोल फ्री हो जाते हैं और वो कंट्रोल फ्री किस तरह नहीं चलता। तो इस वजह से मुझे कई बार लगता है वही बेटर था, बस वो दैट्स इट। बट वो एक पासिंग टाइप का रहता है थॉट कि मतलब जब बहुत ही परेशान हो गए यार अब क्या करें नेक्स्ट यार इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वही बढ़िया था। बट फिर उसके बाद इसी में वापस लगते हैं, इसी में कुछ सॉल्यूशंस प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सर हमारे लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपने एक चीज बार बार मेंशन की थी, टू हैव फेथ इन द प्रोसेस। जैसे मल्टीपल चीजें होती है, कभी रिजल्ट्स नहीं मिलते, परेशान हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो ये हैव फेथ आप मतलब हम कैसे समझे हैव फेथ? मतलब बोलना बहुत आसान होता है, बोलना आसान होता है, लेकिन जर्नी, ये प्रोसेस कैसे आता है? ये जर्नी और प्रोसेस मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि व्हेन एवर हमारे साथ ये होता है कि हमने एसोसिएट किस चीज़ से किया कि व्हाट डू वी वांट इन लाइफ। प्रोबेबली जब मैं भी 2021 और था, कॉलेज से जस्ट निकल रहा था, उस समय मुझे भी लगता था कि आई शुड आल्सो हैव सम डिसेंट सैलरी, कि मतलब महीने में मेरे पास पैसे आए। उस समय क्या है कि द थिंग वाज कि मैं 2010 पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन मेरा 2010 का है, कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद लकीली ठीक है मैं किसी तरीके बैंक ऑफ इंडिया में आ गया था, पीओ आ गया था। लेकिन जब मैं वो ग्रेजुएशन ही कर रहा था ना, उसके एंड फेज में था, उस समय यही लगता था कि आई डोंट हैव एनफ मनी, मैं ये करना चाहता हूँ तो मेरे पास इसके लिए नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ मेरे पास इसके लिए। तो प्राइमरली क्या होता है कि उस फेज में जब आप जैसे कॉलेज से पास आउट हो रहे होते हैं, और ये जो जिस एज ग्रुप की यहाँ बात हो रही है 20-25 वाला जो एज ग्रुप हम लोग का रहता है, उस एज ग्रुप में क्या होता है कि हम एंकर अपने आप को करते हैं कि ओके वी वांट मनी। उस समय एक्चुअली प्राइम एंकर यही है, ठीक है। अगर आपने वहां पे प्राइम एंकर मनी नहीं रखा, ठीक है, आप आराम से यू कैन हैव फेथ, ठीक है। तो मैं खुद के बारे में भी यही बता रहा हूँ। द प्राइम एंकर फॉर मी मे बी कॉलेज में लग रहा था कि उस समय क्या होता था कि भाई ठीक है पॉकेट मनी एनफ था नहीं, घर से आप पैसे ले रहे हैं और आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा आते नहीं थे। माय फादर इज अ टीचर, तो फिर वो उस हिसाब से आप समझो कि भाई हम लोग तो थोड़े से रेगुलेटेड रहे ही हैं। तो मतलब पैसे मिलते नहीं थे बहुत ज़्यादा,
तो उस हिसाब से आपको सराउंडिंग को देख के यही लगता है कि यार थोड़े पैसे तो आने चाहिए, थोड़ी इंडिपेंडेंस आनी चाहिए, थोड़े पैसे आने चाहिए। बट समहाउ क्या हुआ कि कॉलेज से निकलते निकलते हो सकता है मैं इसी में थोड़ा सा लगा रह जाता कि यार थोड़े पैसे आने चाहिए। बट बैंक में हो गया, मैं बैंक चला गया। बैंक में उस समय सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, पर एक साल बाद मैंने बैंक भी छोड़ दिया। ठीक है, तो छोड़ने के लिए 1,20,000 रुपये सैलरी पर मंथ 20,000 रुपये तो वो भी बैंक पीओ की जॉब छोड़ने के लिए उतने देने पड़े। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे फिर ये जो मनी वाला एस्पेक्ट था ना, ये थोड़ा सा खत्म हो गया। मतलब आई स्टॉप थिंकिंग वो मतलब आ जाएगा, वो पैसे आ जाएंगे कहीं से, ऐसा नहीं है कि मतलब यू विल नॉट गेट मनी, मनी विल कम। ठीक है, इफ यू हैव टैलेंट। ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस पीछे ये भी हो गया ना कि यार एक बैंक पीओ जिसकी तैयारी भी नहीं करी थी वो सडनली बैंक पीओ निकल गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अपना। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि जो एंकरेज था वो मनी से घूम के बाकी चीज़ों पे हो गया। ओके, मेरे को ये चीज़ करनी है, हाँ ठीक है, मुझे और पढ़ाई करनी है, ठीक है, मैं रिसर्च साइड जाना चाहता हूँ, ठीक है मैं रिसर्च साइड ही जाऊँगा, पैसे आते हैं। रिसर्च में आप यही देखो ना कि कई रिसर्चर्स जो लोग MSc PhD कर रहे हैं, ठीक है, आगे का विजन या आगे की ये चीज़ क्या है, मतलब आर दे श्योर कि दे आर गोइंग टू गेट अ जॉब? नहीं ना। ठीक है, तो उस समय ये वाला डिसीजन कि मैं एक सेटल्ड जॉब भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं जाके MSc कर रहा हूँ, फिर PhD कर रहा हूँ, वहाँ ये भी थॉट वाली बात थी कि भाई ठीक है, क्या मैं रिसर्च में आगे कंटिन्यू करूँगा, साइंटिस्ट की पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब एक डिसेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वरना फिर वही है कि MSc PhD की डिग्री लेके हम भी घूमें। ठीक है, सिविल सर्विसेज का तो आप कभी नहीं ले सकते, एग्री का बंदा IR एग्रीकल्चर में सबसे बेकार नंबर आ गया। ठीक है, एक्चुअली दिस हैपेंस। हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जो प्रिपरेशन फेज में वी कम टू नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका ये लगता है कि यार ये बंदे में हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है और कुछ है। ठीक है, और जब हम उधर अकेडमीज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कई सिनारियोज ऐसे देखते हैं कि यार ये बंदा कैसे सेलेक्ट हो, इस टाइप के थॉट प्रोसेसेस आते हैं। तो वहाँ पे ये लगता है कि आप ये देखिए कि दी थिंग इज कि अल्टीमेटली आप प्रोसेस वाली बात करें तो श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि यू शुड हैव फेथ, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू जस्ट मनी थिंग। ठीक है, ट्राई टू गेन नॉलेज, ट्राई टू गेन सम स्किल्स। आजकल इतने सारे प्लेथोरा ऑफ स्किल्स अवेलेबल हैं, मतलब द एंटायर जर्नी इज कि यू शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि जिस दिन अपॉर्चुनिटी आई, लाइफ में आएगी जरूर, हर किसी के आते हैं। ठीक है, जिस दिन आई उस दिन यू शुड बी रेडी। उस दिन ये नहीं होना चाहिए कि यार आई वाज़न्ट रेडी और वो हाथ से निकल, ये चीज़ है। और इसका एक एग्जांपल श्रुति को मैंने मेरी सिस्टर का दिया था। सिस्टर ने उसने इंटीग्रेटेड एमटेक किया, उसने कुछ समय वहाँ पढ़ाया, वाटर इंजीनियरिंग में थी। उसके बाद उसने मेरे कहने पे शी ऑल्सो केम टू IIM फॉर PhD। वो वहाँ शी वॉज डूइंग हर PhD, थोड़ा सा गाइड कुछ अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी जो गाइड थी वो थोड़ा सा वैसी हो गई कि भाई अब समहाउ कि यार अब PhD भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी, किसी भी तरीके से सिनारियो वैसा बन गया। बट और इस दौरान क्या हुआ कि उसने किसी और जगह की प्रिपरेशन नहीं करी, कि मान लीजिए वो सिविल्स की प्रिपरेशन कर रही थी, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर, तो अंत में ये लगने लगा कि भाई उसको ये लगने लगा कि मैं क्या करूँ, मतलब हर दिन वाला मैं क्या करूँ, मतलब पूरा का पूरा मेरा करियर वो हो गया। शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही पढ़ाई में अच्छी रही है वो हमेशा, तो उसको ये लगा कि फाइनली सब गया, क्योंकि अब एज भी आपकी जाती जा रही है, कई एग्जाम्स तो आप 28 के बाद नहीं लिख सकते। तो उस फेज में आते आते सडनली क्या हुआ कि एक अभी इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी में साइंटिस्ट की पोजीशन निकली। वो कई बार मतलब हर बार नहीं निकलती, रेयरली निकलती है। मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, मैंने उसे वो एडवर्टाइजमेंट भेजा, उसने भरा, 2 महीने के बाद एग्जाम हो गया। शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1, 8 सीट थी उसमें, बट उसको ऑल इंडिया रैंक 1, शी इज नाउ साइंटिस्ट इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो दिक्कत ये थी। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ कितने समय में? ये पूरा प्रोसेस हो गया 4 महीने में खत्म, फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टू सिलेक्शन फाइनल विद इन 4 months। ठीक है, तो अब वहां पे एक पॉइंट ये आता है कि भाई ठीक है, एक तो आपको थोड़ा सा अवेयर भी रहना चाहिए, मतलब आपके आंखें और आपके कान खुले रहने चाहिए। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन साथ में ये है कि वो साइंटिस्ट का एग्जाम था, उसमें रिटन है, उसमें इंटरव्यू है। ठीक है, अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं होती, क्या 2 महीने में वो प्रिपेयर करती एक नेशनल लेवल का साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन क्लियर करती? नहीं करती। तो यस, उसके लिए लाइफ अपॉर्चुनिटी लेट लेके आई, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी लेके आई, एंड एट दैट मोमेंट शी वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो द थिंग इज कि हमें ये देखना है कि हमारे एंकर्स किधर हैं। हमें खुद को पैसों के पीछे एंकर करना है कि ठीक है, इफ यू आर एजुकेटेड, देखो पैसे तो आ जाए, ठीक है, मे भी जिस लेवल तक आप चाहते हो उस लेवल तक ना आए, हो सकता है तो बिल्कुल चाहिए कि अब इतने आ जाएं कि भाई सामने ही ना हमसे, इस टाइप वाला तो मैं नहीं कह रहा, मतलब यू विल गेट अ डिसेंट, मेक अ डिसेंट लिविंग, वो हमेशा मिलेंगे आपको, आ जाएंगे, बिकॉज यू हैव कंट्रीब्यूटेड योर टाइम टुवर्ड्स योर एजुकेशन, आपने खुद को तैयार किया। ठीक है, बस ये है कि ये जो फेथ है वो तभी आता है व्हेन यू बिलीव कि यस मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है, आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, तो दिस फेथ विल कम। डोंट एंगर इट टू मनी कि यार आज नहीं आया, कल आया, कल नहीं आया, परसों आया, यार पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, तो वो दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है। फिर उसके बाद वो ना तो स्टेबिलिटी आती है, फिर आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाने लगता है ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका ये नहीं होता, बड़े ही आप छोटे छोटे शॉर्ट टर्म उसमें सेगमेंट्स में बांट लेते हो उसको कि यार आप कल की ही सोच रहे हो, आप परसों की ही सोच रहे हो, आप 10 दिन बाद की नहीं सोचोगे, आप 1 महीने बाद की नहीं सोचोगे, तो वो नहीं करना चाहिए। तो दैट वे यू गेन, यू शुड बी रेडी एंड फेथ कम्स फ्रॉम देयर। So last question from my end. What was your childhood like? AIR 1 आपका sister का, आपका AIR 1, AIR 7, AIR 8, मतलब what is the secret behind these AIRs? So what has happened in the childhood? इसे तो मैं कहूँगा कि it is entirely luck। ठीक है, it is luck basically। So all the time? All the time। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ, You are being modest। नहीं, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट बेसिकली, मैं बता रहा हूँ बस ये AIR का अगर आप दूसरा ये कर लो कि ठीक है वी ऑल हैव बीन कंसिस्टेंट। जैसे मैं थोड़ा सा स्कूलिंग का फर्क पड़ा है, मैं वो मानता हूँ। मैं जिस स्कूल में 10th तक पढ़ा हूँ वो एक UMI स्कूल है। UMI एक इटालियन डांस का ग्रुप है, फ्रीलांस ऑफ मैरी मैकेले। ठीक है, इसके स्कूल्स ईस्टर्न यूपी में ही है कुछ के, कानपुर में एक, मरियमपुर कानपुर, वो तो ऑल गर्ल्स स्कूल है। मैं सोनभद्र ओबरा में पढ़ा हूँ यूपी में, वहाँ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट था। फिर इनके जौनपुर में एक स्कूल है, रेणुकूट में एक स्कूल है, तो उस सेगमेंट में ही इनके कुछ स्कूल्स हैं। तो द काइंड ऑफ स्कूलिंग आई हैड वाज वेरी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इनफैक्ट वहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स थे, तो उस टाइप की कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग का फ़ायदा ये रहा कि थोड़ा सा आपका ओरिएंटेशन ही वैसा बन जाता है। हम लोग में वहाँ पे कभी कोई एक डेजिग्नेटेड टॉपर नहीं होता, जैसे क्लास का एक टॉपर हमेशा डेजिग्नेटेड होता है, यार ये बंदा टॉप करेगा, ये बंदा टॉप करेगा, हाँ वाह ये कभी सेट नहीं रहता। एक एग्जाम में एक के नंबर आ रहे हैं, एक के दूसरे के आ रहे हैं, और हमारे जो नंबर है, मतलब मेरे ख्याल से टॉपर के नंबर 75% या 80% ही आते ही उसको। ठीक है, तो वो मार्किंग्स और वो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब यू कैन नेवर बी श्योर कि आप कल ही टॉप कर दोगे। तो उसने 2 चीज़ें करी, एक तो क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव तो बना ही दिया। ठीक है यार, मैं बता रहा हूँ 10th तक आई हैव नेवर टॉप, 5th 6th रैंक होती थी, कभी 7th रैंक होती थी, कभी 4th भी आ जाती थी, मतलब जनरली ये वेरिएबल रहता था। हाँ ये है कि कभी इस सब्जेक्ट में मेरे हाईएस्ट हो गए, इस टाइप का 1-2 सब्जेक्ट का वेरिएशन हो जाता था। हमारे यहाँ जब बोर्ड के एग्जाम हुए थे तो 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स वर अबव 80% CBSE 10 बोर्ड्स में, और सब आगे पीछे लगे थे, 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, सब उधर से
शुरू हो रही थी, एक एक करते हुए सब पीछे लगे हुए थे। उस स्कूलिंग में, हाँ ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्कूलिंग में थोड़ा सा कुछ अलग लेवल का कॉन्फिडेंस या अलग लेवल का ओरिएंटेशन दिया। उस स्कूलिंग ने एक चीज़ ये सिखा दी कि भाई ठीक है, इफ़ यू फेल इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली उस स्कूलिंग ने क्या किया कि उस स्कूलिंग ने रैंक की वैल्यू खत्म कर दी, ठीक है। उसने क्या किया कि एक तरीके से ओके रैंक 1 वाला तमगा और उसके साथ जो एसोसिएटेड सारी चीज़ें हैं कि अब सब मैं ही जानता हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और ये वो करके उसने एक ये चीज़ इनकलकेट कर दी कि यू शुड ऑलवेज बी रेडी, प्रिपेयर करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, इधर पढ़ो, ये देखो, वो देखो, मतलब हाउ बेस्ट यू कैन डू, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वैल्यू इस चीज़ की कतई नहीं है कि भाई ठीक है यू आर रैंक, उस चीज़ की कोई वैल्यू ही खत्म कर दी। तो वहाँ पे हम हमारे बीच एक हेल्दी कंपटीशन, ये मैं जब 11th-12th में गया जिस स्कूल में, ठीक है, तो सिर्फ वो स्कूल में एडमिशन मिलता भी नहीं था। अब मेरे पापा मम्मी चाह रहे थे, क्योंकि मैं उनके पास कभी रहा नहीं, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पढ़ा था, तो मेरे फादर मदर ये चाह रहे थे कि 2 साल में उनके साथ रहेंगे। तो इस वजह से मैं उस स्कूल में गया। उस स्कूल के लिए कहा जाता था भगवान मिल जाते हैं, उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। वहाँ लोग यही कहते थे कि भाई, तो मैं जब स्कूल में हम एडमिशन लेने पहुंचे, मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स थे और ये सारी चीज़ें थी, तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत स्टूडेंट्स उन्होंने साइन कर दिया। फिर फादर ने रिक्वेस्ट की कि मैं भी एक टीचर हूँ, आप एक बार एग्ज़ाम ले लिया, कुछ भी करके ले लिया, मतलब एक तरीके से। फिर तब तक उन्होंने ये नहीं देखा, फिर ऐसे ही उन्होंने मुझसे प्रिंसिपल में बात की, वो भी एक कॉन्वेंट टीचर, उन्होंने फिर मैंने जैसे UMI वर्ड बोला, उन्होंने आगे कहते बस वो UMI वर्ड से उन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। और वो स्कूल वाज लाइक अ पीस ऑफ केक, मतलब मैं 11th-12th की बात कर रहा हूँ, 10th पढ़ा हुआ बंदा, मेरी 11th-12th पीस ऑफ केक, मतलब ये लगा कि यार थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ गया। फिर उसके बाद सडनली नेक्स्ट झटका तो था एग्रीकल्चर कॉलेज, थ्रू आउट कॉन्वेंट्स का पन्ना, अचानक एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंच गया। वहाँ के वही मैं बता रहा था शुक्री को, वहाँ के लिए वो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एलियन, मेरे लिए वो एलियन। और 6 महीने तक तो जो माहौल रहा है, मतलब लेकिन ये है कि उस चीज़ में, उस स्कूल के लिए मैं ज़रूर वही कहूँगा, बट उसके बाद एवरीथिंग इज, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि जैसे वो जो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल है मेरा ग्रेजुएशन का, वो यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल अगर मेरे क्लासमेट्स, मेरे ग्रेजुएशन के बैचमेट्स और तब मिलता तब था, और तब मुझे पता है मुझे नहीं मिलता। तब बहुत बहुत मतलब एक्चुअली तब कहना पड़ता हाँ यार मेहनत तो करी मैंने, तब मेरे मुंह से ये शायद निकलता। लेकिन फिर उसके बाद तो इट वाज लाइक ऑल वेरी इजी, मतलब मैं सिर्फ लेक्चर्स सुनता था जो है प्रोफेसर के, मेरे अपने मैं नोट्स बनाता, मैं नोट्स बड़े बढ़िया बनाता हूँ, तो वो मैं बनाता था बस, ठीक है। उसके बाद मैं वापस उन्हें नोट्स को भूलता भी नहीं। एग्जाम से एक रात पहले वाली जो फाइट रहती थी, उसी फाइट में ओके उतने में ही हो गया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। सो दैट वे आई एम सेइंग कि वहाँ से इक्विप उस स्कूल ने कर दिया मुझे, जहाँ तक मेरी 10th तक की पढ़ाई थी। बट देयर आफ्टर इट्स ऑल शेयर, ठीक है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता, कुछ जगह जो मेरे AIRs आए हैं वो ऐसे आए हैं जहाँ मैंने एग्जाम मतलब कोई तैयारी नहीं करी थी, मैं वो एग्जाम देने भी नहीं जाना था, वहाँ चला गया और वहाँ आ गया। तो इसलिए इट इज शेयर लक, मतलब अगर आप पूरा इन्फ्रेंस निकालोगे पूरे जर्नी का ऑफ ऑल दी AIRs का, तो वो AIR की जर्नी का इन्फ्रेंस यही निकलेगा कि हाँ थोड़ा बहुत इसे पता था, बाकी इट वाज शेयर लक। क्योंकि IRI का जब मैंने क्लियर किया था तब तो मैं 1 साल से बैंक में था, तो आप सोचो क्या पढ़ाई करी होगी मैंने। बस मैं गया हूँ शनिवार को भोपाल में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, वहीं पे सेंटर पड़ता है MP का उस एग्जामिनेशन के लिए। प्रीवियस
इवनिंग पहुंचा हूँ, अगली मॉर्निंग वही इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज के साथ IAS उसके आगे जाके हाँ, तो वो वाला जो है कि वहाँ पे वो किया और आपका फाइनली क्या कहते हैं कि अगली मॉर्निंग मैंने एग्जाम दिया एंड आई लैंडेड 7. तो इसलिए द थिंग इज लाइक we will move to the last session, which is the last question. Anyone, guys, if you have a question. So, hearing the story from your side, let's talk about competition thing. The competition, how has this competition hampered you, or let's say affected you? Like, has it given you a push, or has it some way affected you somewhere negatively in the journey of this? नहीं, मैं इसमें नेगेटिवली तो मुझे इफेक्ट नहीं किया. एक्चुअली मेरा हमेशा से थॉट प्रोसेस ये रहता था कि गिविंग अ कॉम्पिटिशन यू हैव टू बी इन अ मूड ऑफ गिविंग अ कॉम्पिटिशन. ठीक है, तो इसलिए मैं कई बार जो बता रहा हूँ ना कि कई बार तो मैं एग्जाम्स की तैयारी भी नहीं करी, बस एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये वाला एग्ज़ाम है, आई फिल दी फॉर्म, I'll go and sit in the examination. I'll just get a feel of the examination. जो है I'm writing जितना मुझे पता है, ठीक है, उस हिसाब से I'm writing the examination. तो ये जो है बेसिकली क्या है कि आपका थोड़ा सा माइंड कंडीशनिंग, जिस समय आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो माइंड कंडीशनिंग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, कैट आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. कैट के क्वेश्चंस बहुत वैसे नहीं होते, ठीक है, बट इट इज एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर यू हैव टू सॉल्व दोज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सो एज टू गेन दी मैक्सिमम हाईएस्ट परसेंटेज. जो भी परसेंटाइल हाईएस्ट आ रही है उसको आपको गेन करना है. ठीक है, आपको एक कॉमन सेटअप में बिठा दें, आपको फ्री छोड़ दें, आप बहुत ही रिलैक्स हो, चलो सॉल्व करो, ठीक है, आप हो सकता है उसे सॉल्व करो, बट टाइम लगेगा. अब यही चीज आपको क्या करनी है, उसमें करनी है, तो दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, बट एडिशनली दैट रिक्वायर्स द कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड. कई बार क्या है कि मैं जब अपना खाली बैठा रहता हूँ तो मैं ये पजल्स और ये सब भी सॉल्व करता रहता हूँ, चाहे ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हों और ये सारे हैं, ये भी आई कीप ऑन सॉल्विंग. और आपको मैं ये बताऊँ कि सडनली आप ये रियलाइज करोगे कि अगर आपने साल भर से कोई पजल सॉल्व नहीं किया और सडनली कोई बहुत ही सिंपल पजल आपसे पूछ रहा है, तो वो भी आपसे नहीं बनेगी. हाँ, नहीं बनेगी. मतलब ठीक है, हो सकता है बहुत देर सोचो तो आपको पता चल जाए, लेकिन इंस्टेंटेनियस आपको एक जवाब चाहिए, या दिमाग उस तरीके से कभी नहीं सोचेगा. बट इन जनरल अगर आप क्या कर रहे हो ना कि आप प्रैक्टिस करते हो, आप कभी कभार करते रहते हो, यू आर इन टच विद दैट, आपका दिमाग एकदम इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स देगा. ठीक है, सो एक वो होती है कि एक माइंड कंडीशनिंग भी होती है कि व्हेनेवर यू आर लाइक से अभी आप लॉ का है, ठीक है, लॉ के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि भाई आप लोगों को बहुत सारे केस रेफरेंसेस और ये सारी चीज़ें याद रखनी रहती है. ठीक है, आप सडनली किसी टाइम पे आप ऐसा करोगे कि बुक खोलोगे और इधर से एक तरफ से नोट्स बना के उसे याद करने की कोशिश करोगे, तो कभी नहीं होगा. ठीक है, बट इन रेगुलर इफ यू डिवोट a certain part of your day, कोई ज़रूरी नहीं है कोई फिक्स टाइम हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स ड्यूरेशन हो. ठीक है, a certain part of day in reading some, ठीक है, और उसे आप एक तरीके से इंटरकनेक्ट करते जा रहे हो कहीं ना कहीं. जैसे नेक्स्ट डे आपने कुछ पढ़ा तो उसमें क्या है कि कुछ रेफरेंस पॉइंट्स आपने जल्दी देखे, अच्छा यहाँ भी कुछ डिस्कस हुआ, ये करते जा रहे हो. The aim shouldn't be to cram them. The aim is just to read and understand. आप ये कंटिन्यूअस करते रहो, आप फिर उसके बाद विद इन आप देखना 2-3 महीने बाद आपको सब याद रहेगा. ठीक है, योर एम वाज नॉट टू क्रैम और रिमेंबर देम, बट यू विल रिमेंबर देम. आपको याद रहेगा, आपको एक सडन रेफरेंस में ही याद आ जाएगा. कभी कॉमन बात करते ही किसी ने उस टाइप के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी हो तो सडन आ गया इस रेफरेंस के लिए. ठीक है, मैं बॉटनी का भी बंदा हूँ, बॉटैनिकल नेम्स वो तो वैसे ही जानते हो, लैटिन है ना, उसकी हालत वैसे ही खराब रहती है बिल्कुल सबकी, क्या क्या लिखा हुआ. ठीक है, बट आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द बॉटैनिकल नेम्स. ठीक है, मतलब और उसके लिए मैंने कोई बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट कभी नहीं किया.
ठीक है, वो कॉन्शियस एफर्ट कभी नहीं रहा। और प्रोबेबली ये जो मेरे लक में एक पार्ट शायद इस चीज का भी था कि ठीक है, आई वॉज ऑफ अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहना, और वो सारी चीजें इस टाइप के, कभी एग्जाम्स, कभी ये देखना, कभी वो देखना। तो वो अल्टीमेटली माइंड कंडीशनिंग वैसी है। देखो काफी चीजें तो ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में कभी ना कभी पढ़ी होती है। द थिंग इज दैट व्हेनेवर यू आर अपियरिंग इन एन एग्जाम, एमसीक्यूज तो सबसे आसान होते हैं, ठीक है, उसमें यू जस्ट आपको 4-5 आपको एक करेक्ट आंसर ही आइडेंटिफाई करना है ना, ठीक है भाई, आपको उसका इफ एंड बट तो आंसर करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यही आइडेंटिफाई करना। एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत आसान होते हैं। और ये टाइम में ये है कि कई बार तो मेरे को डेजावू टाइप फील भी होता था कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, आई डोंट नो, बट एज सच जैसा क्वेश्चन है और जैसे वो है, दैट आई हैव रेड समवेयर, ठीक है, एंड आई नो भाई ठीक है, उस समय फिर मुझे बट दिस दैट करना ही नहीं है, चाहिए आंसर, एंड दैट इज टू बी करेक्ट आंसर। सो ऑल अबाउट वी हैव रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, हमारा दिमाग एसिमुलेट भी करता है बहुत सारी चीजों को, बस वही वाली बात है कि दिमाग की थोड़ी सी कंडीशनिंग या ओरिएंटेशन उस हिसाब से हो कि एज एंड व्हेन यू रिक्वायर वो थोड़ा सा पॉप आउट हो जाए, ठीक है, बस ये वाली चीज रहती है। तो कॉम्पिटिटिव मोड में रहना तो मतलब इट ऑलवेज इज वेरी गुड। आप बाद में थोड़ा सा ये, अगर मैं वो वाले कंपटीशन की बात कर रहा हूँ जो स्कूल वाली थी मेरी, या स्कूल वाले कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की अगर आप बात कर रहे हो, तो हाँ उसके बाद तो थोड़ा सा थ्रिल एक्साइटमेंट फील होगा। फिर उसके बाद ये हो जाता है कई बार, जैसे कॉलेज में मैं थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गया था, मेरा एटीट्यूड अप्रोच बड़ा वो हो गया था, मतलब ये था कि मैं बहुत इजी अनप्रोडक्टिव चीजों में भी आई यूज्ड टू गेट एंगेज्ड, मतलब ये वाला करके भाई ठीक है, दिन भर क्या किया, अंत में आप शाम को बैठे क्या हुआ यार पता नहीं कहाँ गया दिन, इस टाइप वाली जो फील है। नॉन कॉम्पिटिशन उसने ये किया। उसके बाद एक्चुअली ठीक है, नाउ आई आल्सो अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि फिर जब चीजें बड़ी आसान दिखने लगती हैं तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, दैट आल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। कई बार आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा बिगड़ता है, ठीक है, आपको लगता है अच्छा ये तो मैं कर लूंगा, फिर उसके बाद जाके आप जब एक्चुअली बैठते हो वो चीज करने तो पता चला कि ये हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद से एक प्रॉब्लम ये भी हो गई थी, हाँ एक बेसिक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे राइटिंग्स बहुत बिगड़ गई थी, मतलब नॉट दी हैंड राइटिंग, ठीक है, मतलब हाँ जो राइटिंग्स हैं कंटेंट जो है वो बहुत बिगड़ा था। मतलब जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके अराउंड वाले फेज में दी कंटेंट और जो एक्सप्रेशंस थे कि भाई आपको किसी भी चीज़ को कितने कंसाइज फॉर्मेट में कितने आराम से बताना, वो तो मतलब इट वाज जस्ट थ्रोन आउट ऑफ विंडो। वो ऐसा हाल हो गया था। उससे पहले मोटिवेशन जो था वो था कंपटीशन, देन इट हैड टू टर्न इनटू सेल्फ मोटिवेशन। तो वो वहाँ पे वो एक्चुअली नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन भी अपने आप में वो जो थ्रिल है, वो जो एडवेंचर है वो चाहिए, वो डोज तो चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कॉम्पनसेट वहाँ से हो गया कि मैं एग्जाम जरूर लेता था, ठीक है। तो भले आई यूज्ड टू फेल इन दोस एग्जामिनेशंस या जैसे भी हो, नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उससे क्या रहा कि वो थोड़ा सा मोड बैलेंस आउट हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये तो कंटेंट जो है, मतलब उस समय के मेरे आंसर्स बड़े शानदार हुआ करते थे, और बाद के जब मैं आंसर्स देखता हूँ तो मैं मतलब पता नहीं क्या लिखा जा रहा हूँ, बाद में कभी पढ़ता हूँ उसमें क्या लिखा जा रहा है। सो दैट वे इट, वहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। Anyone else? Swami, you have a question? I just have one question. That earlier we were speaking about the scenario wherein your juniors weren't performing. Now let's talk about the other side. When your senior is putting pressure on you, then how do you handle it? Actually the thing is कि इसके लिए a person in my position is not the right person to answer. Okay. ठीक है, क्योंकि हम फिर सीनियर मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो अपना आपका ये वाले सेटअप्स हैं, IAS वाला सेटअप है, IPS वाला सेटअप है, IFS का सेटअप है, इन सेटअप्स में क्या होता है कि इन सेटअप्स में अ लॉट ऑफ
एक्शन पावर्स इज विथ यू, मतलब बीच फिलोसफिकल में आंसर जो इफ आई एम हियर, फिलोसफिकल आंसर ये है कि आप उसी में प्रेशर डालते हो जिसको आपको पता होता है कि करेंगे। ट्रस्ट में। हाँ नहीं, ये तो खैर ये तो यूनिवर्सल बिल्कुल परफेक्ट है, ये मतलब इसको तो कोई डिनाई नहीं करता, ये होता है। तो ये समझ लेना ही हैज फेथ। और दूसरा ये वाला भी है, और ये ठीक है, ये सेटअप में इज विद यू ओनली, नहीं ही इज विद कंट्रोल। अच्छा वहां से इट्स अ 365 डेज ऑफिस और कोई रात नहीं होती, कोई दिन नहीं होता, तो वैसा वाला ऑफिस, इसलिए बोल रहा है तो तो उस वाले में ये है कि हमारे वाले It's okay, positions पे जो रहता है, हमारे वाले पोजीशंस पे a lot of things that are to be initiated are initiated at our goals। मतलब ऊपर से कुछ हमें जो गाइडेंस मिलता है वो गाइडेंस के फॉर्म में ही रहता है, मतलब इट कैन नॉट कम एज अ फॉर्म गोल ऑफ ओरिएंटेड बोला, यू हैव टू कंक्लूड दीस गोल्स इन टाइम लिमिट्स। क्योंकि ये पोस्ट वैसी हैं कि भाई ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट व्हाटएवर इज टू बी इम्प्लीमेंटेड हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल। हियर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होना है, डायरेक्शंस ऊपर से आना है, ठीक है। और यहाँ जिनसे मुझे इम्प्लीमेंट कराना है उनके लिए द डायरेक्शन गिविंग बॉस इज माई सेल्फ। तो दैट इज वाई क्या होता है कि आपको ऊपर से ऐसा कोई प्रेशर परकोलेट नहीं होता, बट हाँ जाहिर सी बात है कि ये वहां पर रिफ्लेक्ट होता है कि आपको कहाँ पोस्ट किया जा रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट्स यू आर बीइंग गिवन, ठीक है। कई बार ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ठीक है थोड़ा सा इंटरवेंशन ज्यादा करने की जरूरत होती है, तो फिर वहां पे ये रहता है कि ये जो इन्होंने कहा ना कि प्रेशर उसी पे आएगा, मतलब जो सबसे सही वाला बंदा होगा उसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा कि अब जाओ तुम इसे सही करो, ठीक है, भी संभाल पाओगे, तुम ही संभालोगे इसे। तो वो दैट वे वाला जो है वो वही वाली बात है कि प्रेशर उसी पे आता है, वो कैन डिलीवर। और ये हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है, ठीक है। समहाउ ऐसा लगता है कि आप डिस्प्रोपोर्शनेटली एक स्क्यूड फॉर्मेट में किसी एक को बहुत ज्यादा बार बार बोल रहे हो, यार तुम ये देख लेना, यार तुम ये देख लेना, तुम ये देख लेना, तुम ये डांट भी वही खाता है, डांट भी वही खाएगा, गड़बड़, क्योंकि जो काम करेगा गड़बड़ भी तो वही करेगा, डांट भी वही खाएगा। लेकिन मतलब आप स्क्यूड रहते हो, मतलब आप हर किसी को बाय नेम नहीं जानते, या हर किसी को आप बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी काम के लिए नहीं जानते। वो किसी काम के लिए तो आप स्पेसिफिकली एक ही बंदे को पकड़ते हो जनरली, तो वो वाला प्रेशर रहता है। बट जनरल मैंने एक चीज तो देखी है कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारे मन में कहीं ये हो रहा हो, इन जनरल 99.99% ऑफ टाइम्स वो कुछ अलग तरीके का प्रेशर नहीं है, ठीक है, वो नहीं आता, इट इज नॉट देयर, ठीक है। वो थोड़ा सा बाहर वालों का परसेप्शन है कि यार ऊपर वाला फोन करके इनको प्रेशराइज करेगा किसी चीज के लिए, उसके लिए करेगा, उसके लिए करेगा। इट नेवर हैपेंस, इट डजंट हैपन एट ऑल, मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस में। But your subordinates must also have their subordinates. They delegate. Is it नहीं, अब सेटअप ऐसा है कि इस सेटअप में इसके बाद डेलीगेशंस बहुत नहीं। Okay, there is no delegation from that. You and your subordinates. हाँ, तो इसके बाद डेलीगेशन नहीं होते, मतलब पुलिस में और फॉरेस्ट में तो डेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। वहाँ पे जस्ट एक सपोर्ट के लिए एक बंदा रहता है, पुलिस में तो रहता ही है, फॉरेस्ट में तो अब वो भी नहीं है। तो वहाँ पे मतलब वो एग्जीक्यूशन करते हैं, पावर डेलीगेशन नहीं है, इसके बियॉन्ड नहीं, उनमें है। आईएएस में पावर डेलीगेशन है आशीष, तो वहाँ पे a lot of powers are delegated by the collector to devolve कर देते हैं to the SDMs, ठीक है। तो SDMs are basically collectors for a subdivision, वो वही पावर एंजॉय करते हैं जो कलेक्टर, तो वो वहाँ पे है, पर इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में तो फिर डीएफओ के पास ही कंसंट्रेट रहता है और एसपी के पास ही कंसंट्रेट, बाकी वो सब एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखते हैं, सब एग्जीक्यूटिव वर्ड वहाँ ज़्यादा जुड़ता है, क्योंकि ग्राउंड वर्क वही है और उन्हीं के बेसिस पे हमारी रिपोर्टिंग रहती है। भाई मेरी एफिशिएंसी 100% है, जो मेरा कटिंग एज स्टाफ है उसकी एफिशिएंसी 5% है, उनकी एफिशिएंसी भी तो 5% है, हमारी एफिशिएंसी ऑल्सो 5%। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया। प्रेशर, इतना प्रेशर आ रहा है। Yes, Brahm. Yes, sir. So, good evening, sir. हाँ. So, मेरा क्वेश्चन है about confidence. जैसे आपने बताया that you are preparing for civil services, but आपका जो मेन डोमेन था एग्रीकल्चर, उसमें आपके लिस्ट स्कोर आया। मैं टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपना एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था सिविल जज का,
बस माई क्वालिफाइड प्रीलिम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली एंड देन मेंस में जजमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में मेरे सबसे कम मार्क्स आए एंड मैंने कंपेयर्ड माई आंसर शीट टू द सॉल्व्ड मॉडल आंसर की जो एक पब्लिशर ने बहुत रेप्यूटेड है उनके बुक से कंपेयर किया. आई फ्रेम्ड द सेम इश्यूज विद द सेम रीजनिंग एंड स्टिल आई गॉट द लोएस्ट ऑफ मार्क्स and because of that I did not qualify. So that had shattered my confidence to that most level. उससे रिकवर होना बहुत मुश्किल था. तो उसका इफेक्ट मेरे पेरेंट्स को भी हुआ, फैमिली को, बिकॉज आई वाज लिविंग विद माय फैमिली. अभी भी रह रहा हूँ उनके साथ ही. तो इतने इस लिमिट एक्सटेंड आ गए तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कोर्ट के क्लर्क के लिए अप्लाई कर लो, शायद वहाँ हो जाए. तो आई एम नॉट डिमीनिंग एनी पोस्ट, बट जो डिमीनिंग थी, हाँ, मतलब कि आपकी जो मतलब कि आप जो कॉन्फिडेंस जो शेडर होता है उसको आप कैसे आपने इग्नाइट की वो फायर, मतलब कि कब तक आपको फायर एक पे अपने अपने गट्स के ऊपर चलना है या फिर कब प्रैक्टिकल होकर दूसरों की बात सुननी है. मतलब कि मीनवाइल आफ्टर दैट 2 months down the line I am qualified UGC NET also. I am qualified to be assistant professor and now CAB came and now I am just attempting to write it also. तो बट ये कि हाँ मतलब कि जो प्रेशर होता है जो फैमिली से और जो कॉन्फिडेंस होता है जो आपको शेटर करते हो, जो आपने कैसे मेंटेन किया? मैंने यही स्टार्टिंग में बताया कि इसे एक्चुअली क्या है कि देखो लाइफ जब श्रुति से बात हुई थी इनिशियल इंटरेक्शन में, तो यही वाली बात थी लाइफ क्राइसिस. व्हाट आर लाइफ क्राइसिस? ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हम वही है ना कि हम एंकर कर लेते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ लाइफ क्राइसिस यार, यू फेल, ठीक है, वापस तैयार करो, मतलब उसे इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है. और मैं जानता हूँ मेरे को कहना आसान है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, जिन्होंने कहा कि आई हैव गिवन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम अंडर दी सन, ठीक है, मैं देता रहता हूँ, मुझे लगता है हर किसी में रैंक आती है. गिनती में कितनी बताई उन्होंने? कितनी बताई? ठीक है, ओके, ज्यादा 6-7 होंगे जिसमें आप ले, ठीक है, बट उसके पीछे ये भी देखो ना, हाउ मेनी हैव ठीक है. अब यही वाला देख लो, ठीक है, एग्रीकल्चर में मेरे पास एक रेफरेंस भी है ना, मैं टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन दी कंट्री एंड प्रोबेबली इन एशिया एग्रीकल्चरल डोमेन में मैं उसमें पढ़ रहा हूँ, ठीक है. पेपर जो है वो पेपर बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, यही पार्ट 2 होता है, 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 किसी भी सब्जेक्ट के पेपर यूपीएससी में. The part 2 is entirely biochemistry. Biochemistry मेरा माइनर था, फिजियोलॉजी मेरा मेजर था, ठीक है. यही चीज मैंने मास्टर्स कर लिया इसमें, ठीक है. मैं पीएचडी फर्स्ट रैंकर भी हो गया, मैं IRI क्वालिफाई कर गया, वहाँ पे गोल्ड मेडल मिल गया, ठीक है. अब उसमें ये नंबर आया, ठीक है. तो देखो क्या होता है कि लाइफ में नॉट एवरीथिंग इज नो, ठीक है. ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी नहीं पता. मैं तो मेरे हिसाब से श्योर था, मैं तो तब तक श्योर था जब तक मैंने नंबर नहीं देखे. मैंने क्या कहा, मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार गया है, तो मुझे इंटरव्यू में नहीं मिला हो, मैं यही मान के बैठा हुआ था. एंड आई वाज ओके यार, इंटरव्यू तो वास्तव में बहुत अजीब सा गया था, मैं यही मान के बैठा, ठीक है. जिस दिन मार्क्स आए उस दिन होश हुए, ठीक है. बट टेक इट एज अ लाइफ में फेलियर्स को जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और फेलियर्स को हम थोड़ा सा सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना, तो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो हम क्या है, लाइफ क्राइसिस को बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ क्राइसिस बना लेते हैं, बहुत छोटी चीज़ों को, ठीक है. और ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास एक फॉर्मल जॉब थी. मैं ये बता रहा हूँ रिसर्च के फील्ड में अगर आज भी कोई बंदा रिसर्च में जाना चाह रहा है और वो MSc करने कहीं एडमिशन ले रहा है ना, तो उसके घर वाले उसकी बैंड बजा रहे हैं, ठीक है, कि यार तुम MSc करोगे तो PhD करोगे, मतलब नौकरी करनी है आगे कि नहीं करनी है, कि दाढ़ी बढ़ा के बैठे रहना है वहाँ पे, यही कहेंगे ना, ठीक है. मैं एक PO की जॉब छोड़ के मैं कहाँ गया, MSc करने और PhD करने, ठीक है. तो लाइफ क्राइसिस जो है हमें बहुत छोटी चीज़ों को नहीं बनानी चाहिए. इतनी सी छोटी चीज़ अगर किसी को शैटर कर दे रही है तो वो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है. देखो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमेशा ही होते हैं, ठीक है. कुछ के पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव होते हैं, कुछ के पेरेंट्स थोड़े से सपोर्टिव नहीं होते, ठीक है. वो कई बार अपने एम्बिशंस भी आपके साथ अटैच करते हैं, ठीक है. बोथ थिंग्स फॉर देम वी आर द इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं होता तो ये हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा वो मटेरियलिस्टिक साइड जा रहे हैं, ठीक है. द थिंग इज कि ओके, ठीक है, यू बी हेल्दी,
यू बी गुड, यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा ही खुश रहेंगे, ठीक है। उसके बाद की एक्सपेक्टेशंस कई बार क्या है कि हम खुद पे भी थोप लेते हैं कि भैया ठीक है यार, ये करना है यार, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। हमें हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि हम जो करना चाह रहे हैं, हम कहीं पे भी लगे, एक आध दो फेलियर लेकर चलते हैं, ठीक है। और फेलियर्स को नहीं सेलिब्रेट करोगे तो जिस दिन यू विल बी सक्सेसफुल उस दिन वो सक्सेस को भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। हमारे अकेडमीज में जब हमारे इंटरेक्शन होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो एक अटेम्प्ट में भी आ जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो 6 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं, या 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट या 5 या 6 अटेम्प्ट के बाद भी आ रहे होंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस पर्सनालिटी में, थॉट प्रोसेस में, और उन सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो until and unless you are like failure is a very important component, try to celebrate it, ठीक है। चलो यार गए ये एनालाइज करो कि वहाँ ठीक है कहाँ कमियाँ रह गई, उन कमियों को सुधारो, फिर से अपेयर करो, ठीक है। और आपको तो मल्टीपल टाइम्स अपेयर करो यार, क्या जुडिशियरी मिल जाएगी, जुडिशियरी दो तो एक ही अटेम्प्ट आता है क्या उसमें? नहीं, एक्चुअली रूल्स अमेंडेड हो चुके हैं एंड वी हैव टू प्रैक्टिस। ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ रूल्स में अमेंडमेंट भी आया है कि आपको पहले थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद फिर आप ठीक है, संकल्प है ही आपके, ठीक है, प्रैक्टिस करो इनके साथ और कुछ समय अपना प्रैक्टिस के यहाँ भी आएंगे तो यू विल फाइंड 99% फेलियर रेट, हम 10 में से 9 के उठाते हैं। हाँ, तो वो एक फेलियर है समथिंग क्या है कि मतलब आई आस्क दीस पीपल कि वी शुड जोक अबाउट इट कि क्लाइंट क्या सोच के अंदर आ जाता है, दिमाग में खराब है इसका, मतलब सच इज द इस ऑफिस में मैं ऑफिस का बता रहा हूँ, उसमें हैज रिमेन कंसिस्टेंट, मैं कभी 1% से ऊपर उठा ही नहीं। तो मतलब वो केसेस में जिसमें जजेस को बाकी लोगों को रिलीफ मिल जाता है, वो मुझे बोलते हैं तुम्हारा इंस्पेक्शन एंड वी लाफ अबाउट इट, बिकॉज़ दैट्स नहीं कर सकते, दोस्त भी आके तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बस ठीक है। और मतलब क्या है कि फेलियर्स को हम बहुत हैवी ले लेते हैं खुद पे ना, तो वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। नहीं हुआ यार, नहीं हुआ, ठीक है। अब हम ये थोड़ी ना आईएएस हर कोई बनना चाहता है, मैं तो नहीं बनाना, ठीक है, तो आई एम हैप्पी। और मैं आज देखता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि भैया नहीं बना मैं। So when do you think that now is the time I should move ahead in my life? मतलब कि जो हो गया तो let bygones be bygones, तो वो परफेक्ट बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए उस टाइप? उसके लिए देखो क्या है कि देयर इज नॉट वेरी स्पेसिफिक सेट टाइम। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आजकल एक बहुत बड़ा वो भी चल रहा है ना, ये डिस्कशन होता है कि लोगों ने अपनी लाइफ के 5 साल 6 साल 7 साल मतलब सिर्फ तैयारी में बर्बाद कर दिया, देयर वाज नो आउटकम, ठीक है। ये इस टाइप की चीज चल रही है। वहां पे आपको ये देखना है कि देखो अगर आप 3 बार 4 बार 5 बार करने के बाद भी if you are not succeeding, then there is inherently some very big problem जो probably you are not able to identify and rectify, ठीक है। तो ये है कि as and when you get to know that is the point you should stop, ठीक है। अब उसके लिए हर जगह के लिए सेट नहीं है, और unnecessary time देखो you are your best judge, इंट्रोस्पेक्शन आपका ही बेस्ट है, आप क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए हो वो आप ही जानते हो, वो कोई और नहीं जानता, ठीक है। हमें कई बार ये लगता है मतलब अननोन पीपल जब यूपीएससी के मॉडल आंसर्स आते हैं, एक बड़ा ही वो कंपैरिजन का वो रहता है कि जब यार मैंने तो ये पॉइंट्स लिखे थे, मैंने तो पॉइंट जैसे एग्जाम खत्म होगा ना उसके बाद जो तैयारी कर रहे हैं सब बैठ के भाई मैंने तो ये लिखा था, मैंने तो ये लिखा था, मैंने तो ये लिखा था, मैंने तो ये लिखा था। जो एक आध जो टॉप कर गया पिछले बार टॉपर की कॉपी मैंने विजन आईएएस से निकाली थी, विजन आईएएस की टॉपर कॉपी में इसी टाइप के पॉइंट्स लिखे थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मेरा तो हो रहा है हवा हो जाता है उसमें एकदम से जब अंत में रिजल्ट आते हैं। सो द थिंग इज कि प्रोबेबली क्या है कि द वे वी आर टू द आउटसाइड, द वे वी आर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सहज रह पाना और जो वो रह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको हमेशा ये लगता है कि नहीं यार मैं इससे बेहतर हूँ, यार मैं इससे बेहतर हूँ। आप मुंह से नहीं बोलोगे, वर्ड से नहीं बोलोगे, लेकिन आप कुल मिला के समहाउ वो आपके हाव भाव किसी न किसी एस्पेक्ट में आ जाता है,
ठीक है, आप 4 दोस्त बैठे हुए हो तो 4 दोस्त में हर किसी को लगेगा कि मैं बाकी 3 से तो थोड़ा बेहतर हूँ, किसी ना किसी पॉइंट पे वो आता है, नॉट प्रोबेबली डायरेक्टली इन योर वर्ड्स, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि ये है ना कि अब दुनिया ही ऐसी है कि आडंबर भी बहुत रहते हैं, ठीक है, और आप अनचाहे में भी वो आडंबर बाहर आ जाते हैं, सामने आप लगा ले तो, मुखौटे पहन ले तो बस द थिंग इज कि इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट थिंग, थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन, ठीक है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, कहाँ कमी रह गई, अगर वो रियलाइज कर पाने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, मान लो एक बार है आप फर्स्ट टाइम थे नोवाइस थे, पहली बार एग्जाम लिखा आपने, थोड़ा सा अंदाजा नहीं समझ पाए, ये देखना था या ये एस्पेक्ट्स कवर करने थे, यहाँ पे आप वीक हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ आई बिकेम वेरी वीक इन एक्सप्रेशंस, जो राइटिंग का आंसर राइटिंग है, ठीक है, अब जजमेंट है, जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, इफ यू आर अ गुड, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो वही चीज है, जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, इफ यू आर अ गुड एंड एविड रीडर यू विल बी अ वेरी गुड राइटर, बहुत बढ़िया राइटर हो गया अगर आप एविड रीडर हो तो, ठीक है, खूब पढ़ रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से जो लिख के आएगा ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब ये है कि थिंक कि हो सकता है एक्सप्रेशंस में कहीं प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोहेरेंस में कहीं प्रॉब्लम हो, सेंटेंस फॉर्मुलेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, मतलब कुछ निकलना था मतलब कुछ निकल गया, कई बार लोग क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस की बजाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने लगता है, ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सेमीकोलन लगा लगा के वो ऐसे हो जाते हैं, इधर से शुरू किया और जो एंड पे पहुंचे तो नहीं समझ में आया यार क्या पढ़ गए, ठीक है, तो दोस थिंग्स मैटर, जस्ट एनालाइज एंड यू विल सक्सीड, ठीक है, उसमें क्या है इतना लाइफ क्राइसिस बनाने की जरूरत नहीं है कि और इधर चले जाए उधर चले जाए, ये करना वो करना, ठीक है, एक बार शिद्दत से एग्जाम दो, हो जाएगा। We have less time, we are taking 3 more questions, okay? I'll give first to Ayushi. She is the youngest member of this group. Yes sir, I have a question. First of all, good evening sir. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, so please try to understand. तो अभी आई एम अ 5th year लॉ स्टूडेंट, मेरा कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे, कोई काम नहीं है मुझे अभी, सिर्फ पढ़ना लिखना है एंड आई एम एक्सप्लोरिंग एवरी फील्ड जो कि लॉ प्रोवाइड कर रही है, लाइक लिटिगेशन, मैंने सर के संग इंटर्नशिप की, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की, देन मुझे लगा कि कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो सब बच्चे कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखा बहुत ही गंदा, मतलब हाथ जोड़ लिए मैंने उधर, तो फिर जुडिशरी भी ट्राई की, जुडिशरी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि वहाँ पे वॉज नॉट माई टाइप। तो इस एक्सप्लोरिंग की, हाँ टीचिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि सबने मुझे बोला कि जितने मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे प्रोफेसर्स हैं, दे सेड कि यू आर वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड टीचिंग एंड मेकिंग समवन अंडरस्टैंड। तो इस बीच 2 चीज़ें पता चली कि आपकी लाइफ में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है ड्रीमी, नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा डिफरेंट बोलेंगे, एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इन सेंस कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आपको LLM करनी है, LLM कीजिए या फिर PhD कीजिए एंड गो फॉर व्हाट एवरीवन वांट्स या पेरेंट्स वांट या सोसाइटी वांट्स, आपसे एक्सपेक्टेशन है। एक होता है सर थोड़ा सा डिफरेंट साइड, जो आपने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, आपको लगा कि इसमें कुछ है जो होना चाहिए बट नहीं है, और आपको लग रहा है अगर आप उधर जाएंगे तो ऐसा होगा कि शायद आई थिंक अभी इस टाइम पे कि किसी ने नहीं सोचा होगा वो, तो लेकिन उसमें ये वहाँ पे रिस्क बहुत है कि शायद फेल हो जाए हम, हो सकता है कि क्योंकि किसी ने ही नहीं किया तो हम कौन से करने वाले हो रहे हैं इधर। और एक होता है प्रैक्टिकल साइड, आपको पता है कि हाँ इसमें तो है ही सक्सेस, मतलब इट्स एन ईजी थिंग कि गेट अ जॉब, गो फॉर द रेगुलर लाइफ, वही फैमिली एंड ऑल। एक होता है थोड़ा रेबल वाली या रेवोल्यूशन थिंग, आपको क्या लगता है कौन सी चूज करनी चाहिए और क्यों? Oh my God, मतलब ये नहीं छोटे पे hand बड़ा दिमाग। and the thing is कि मैं बताऊँ क्या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब सर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं, the thing is कि देखो क्या है कि it all depends on अभी हाल फिलहाल आपकी प्रायोरिटीज क्या है। देखो एडवेंचर हमेशा ही करना चाहिए, ठीक है, हम प्रो एडवेंचर, ठीक है, उन एरियाज को अगर हम कोई ना किसी को तो टच करना होगा ना, जो अनटच्ड एरियाज हैं। अब उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो 2-3 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि पहला एस्पेक्ट ये है कि ठीक है आप थोड़ा सा चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ये है कि अंदर फिर थोड़ा सा दम कितना है,
ठीक है, क्योंकि दी अदर एस्पेक्ट वेयर यू वांट टू टच दी अनटच्ड थिंग्स ऑफ लाइफ और वहाँ पे आपको सुधार करना चाहते हो, दैट रिक्वायर्स करेज, ठीक है, एंड करेज ऑफ अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। वहाँ पे हर मौके पे फेलियर्स भी बड़े होते हैं, Exactly. ठीक है, ऐसा तो है नहीं बॉस पहुँचे और एकदम से सक्सेसफुल ऑल फ्लाइंग कलर्स। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फेलियर्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन मैंने अभी एक चीज़ कही थी ना कि दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई योर पैशन। पैशन यहीं से पता चलता है, ठीक है। पैशन कभी भी प्री ऑर्डेन्ड नहीं होता कि अभी शुरू से ही बस हम इस चीज़ में पैशनेट हैं, हम इस चीज़ में पैशनेट हैं, पैशन यहीं पता चलता है। तो दीज एडवेंचर्स तो मैं तो सभी को सजेस्ट करूँगा, इफ यू आर इन अ वेरी अर्ली एज, अभी है लाइफ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो भाई 2-4 धमाके 2-3 साल जो है इस तरफ जाने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मजा भी बहुत आता है, हाँ। ठीक है, इसमें बहुत झाड़ भी पड़ती है, जैसे जुडिशरी में ही चले जाओ, ठीक है, कोई PIL तुमने एक ऐसे इश्यू में पकड़ ली कि बस कुल मिला के नहीं ना जाके कहा कि आज पहली बार तुम्हें PIL फाइल कर रहा हूँ फिर उसके बाद जज साहब जो है वो बढ़िया झाड़ेंगे आपको कि ये कैसा है, वो कैसा है, दिस वे दैट वे। तो इसमें मजा भी बहुत आता है, ठीक है, एंड ट्राई तो करना चाहिए। उसके बाद अगर पैशन डेवलप होता है, यू बिकम पैशनेट अबाउट इट, कंटिन्यू डूइंग इट, अदरवाइज 3-4 साल 5 साल बाद रिटर्न। नहीं सर, क्योंकि जब मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन की थी तो सर मुझे नहीं पता था ये क्या है, कैसी चीज़ हो रही है। 4th ईयर में मैंने स्टार्ट की और लिटरली 6 महीने मैंने की होगी, उसके बाद मैंने छोड़ दी। उसका सर सबसे पहला रीज़न था कि जो टीचर थे हमारे, उनसे आई यूज्ड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों। एक दिन वो बहुत इरिटेट हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए क्लास में। मैं क्वेश्चन, ही सेड जुडिशरी रट्टा मारने की चीज़ है, रट्टा मारो, ज़्यादा सोचो मत। तो मैंने बोला जब सोचना ही नहीं है तो किस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, जब दिमाग ही नहीं लगाना हमें तो क्यों पढ़ रहे हैं। आपने बैरक बना दिया, हम रट के जा रहे हैं, उसको लिख कर आ रहे हैं। इसीलिए अभी एक केस आया था जिसमें एक ADJ ने मर्डर में 4 साल की सजा दी है। तो इसीलिए ये चीजें होती हैं। I do understand, आपके predicaments also I understand, ठीक है, कुछ लोगों में थोड़ा सा होता है, and I always suggest and I would always suggest, मतलब मैं खुद के लिए भी बता रहा हूँ, बैंक छोड़ रहा था जिस समय ना, उस समय ये सोचो कि जिस समय मैं अपने फादर से ये कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, 1,20,000 रुपए दे दो क्योंकि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। उस समय हालत सोचो तुम क्या हुई होगी हर जगह, ठीक है। और उस समय जो लोग बाहर से आउटराइटली मुझे कुछ गालियां नहीं देना चाह रहे होंगे ना, उन लोगों ने ये बोला हाँ पढ़ने में ठीक है, कुछ अच्छा ही करेगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है। मनी मन वो जो है उस एनवेलप के अंदर ये जो वर्ड्स थे, इन वर्ड्स के एनवेलप के अंदर जो वर्ड्स थे वो क्या होंगे ये सोचो। तो ठीक है, लाइफ में एडवेंचर इज ऑलवेज नेसेसरी, और ये क्या होता है कि डेवलप्स यू एज अ पर्सनैलिटी, ठीक है। और मैं ये हमेशा कहूंगा कि पर्सनालिटी इज ऑलवेज हेल्प। ये जो बनती है ना, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, हमने यहाँ ये किया, हमने वहाँ ये किया, मतलब ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है। मैं बैंक में था, ठीक है, आज जितना भी है, मैं जितनी भी फाइनेंशियल इसका रहता है मेरा जॉब प्रोफाइल में, क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स हैं, ठीक है। तो बैंक में क्या था कि अब बैंक में हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, कैश बंद करवाते थे, तो उस समय कभी मिसमैच हो जाए तो अब सोचो इतने सारे ट्रांजैक्शंस में से ये ढूंढना कि गलत क्या पंच हुआ, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करते हुए वो ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि अब तो बस ऐसे आप पलटते जाओ, नंबर तो ऐसे ही दिखता हूँ, जहाँ गलत है वहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या है कि मेरे सामने अब इतना प्लेथोरा बुक रख दो फाइनेंस का, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा डाला हुआ है, ठीक है, नंबर्स डले हुए, पलटते ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़, ठीक है। तो सम और दी अदर वे कभी किसी ने लिंक बैठाई होगी क्या कि ये बैंक में था और इसको यहाँ पे जब IFS बनेगा, DFO बनेगा तो इसे हेल्प मिलेगी इस चीज से? नहीं मिली होगी। अब मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट बताता हूँ। मैं जब PhD कर रहा था, तो PhD में मैंने वन ऑफ द माइनर एग्रीकल्चरल फिजिक्स लिया, तो मैं रिमोट सेंसिंग और GIS
माइनर भी किया हुआ है, तो RS रिमोट सेंसिंग और GIS जो है, यानी एक तरीके से कार्टोग्राफी, मैप और ये सब इसमें अपन पढ़ाई के दौरान एक्सपर्ट हो गए। जब पढ़ाई के दौरान एक्सपर्ट हो गए, आज मैं बैठा हूँ वन ऑफ दी बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, वो लैंडलॉर्ड, इतनी सारी जमीन है जो मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो नाउ टू मैनेज दोज मेरी पढ़ाई काम आ रही है। मैं अंत में IFS में नहीं सोच रहा था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, मेरी स्पेशलाइजेशन प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है, IRI से जो मास्टर्स PhD है मेरी। प्लांट फिजियोलॉजी इज हाउ प्लांट्स बिहेव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, भाई कैसे न्यूट्रिशन लेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, गर्मी है तो कैसा करेंगे, ठंडी है तो कैसा करेंगे, फूल कब आएगा उसमें, फल कब आएगा उसमें, ठीक है, कैसा सॉइल चाहिए, कैसा ये चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, पानी चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड नाउ आई एम डीलिंग विद फॉरेस्ट, आई एम डीलिंग विद प्लांट्स एज माय प्रोफेशन, ठीक है। तो द थिंग इज कि एडवेंचर्स आर नेसेसरी, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि अनफोल्ड होता रहता है धीरे धीरे, जो बाद में चलते रहते हैं, और कई लोग क्या कहते हैं कि जानबूझ के जाके बिल्कुल कि अब तो बस कल से एडवेंचर शुरू और यही फील्ड में मैं एडवेंचर करूँगा, तो वो वाला टाइप है। तो आई थिंक यू शुड गो अहेड, ठीक है, जो दिमाग में आ रहा है 2-3 साल में अपने वो दिमाग के कीड़े जो हैं पूरे निकालो, और फिर उसके बाद फाइनली दैट विल बी द पॉइंट, वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है ना, दैट विल बी द पॉइंट, देयर यू डिसाइड अब यही करना है या चलो वापस आना है, बिकॉज अभी तो आप ठीक है, अभी तो एज इज ऑन योर साइड। थैंक यू सर। अंशुमान अभी वाली सर बस थोड़ा सा होता सर, इसके कितने महीने आप बैंक के में 13 months 13 मंथ्स 20 का प्रॉफिट, ठीक है, उससे कैलकुलेट कर रहा। हाँ, तो 13 months का जो वहाँ का भी बड़ा वैसा एक्सपीरियंस था मेरा। बैंक में जब भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपसे अकाउंट ओपनिंग सिखाते हैं, ऑफिसर जाए, क्लर्क जाए, कोई भी जाए, और आप पहले अपना अकाउंट खोलते हो। उस समय कोर बैंकिंग आई थी 2009, लेट 2009 में कोर बैंकिंग आई थी। 31 जुलाई 2010 को मैंने बैंक ज्वाइन किया, ठीक है। तो वहाँ गया तो काउंटर क्लर्क के पास बैठा दिया गया मुझे, ये अकाउंट ओपनिंग सिखाएंगे आपको। मुझे को दिया नहीं, तो वो उसमें बता रहा हूँ, फिनाकल जो था वो यूनिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो ये सॉफ्टवेयर बैंकिंग यूज कर रहे थे। मतलब उसमें आपको पासबुक प्रिंट करनी है तो आपको TDP टाइप करना पड़ता है, तब वो पेज खुलेगा, फिर उसमें आप अकाउंट नंबर वगैरह डालोगे तो तब पासबुक प्रिंट होगी। तो वो यूनिक्स बेस्ड था, हर चीज़ के लिए कोड एंड कमांड्स थे, ठीक है। तो वो भाई ने मेरे को अकाउंट ओपनिंग में सिखाया, पहले आप ये दबाएंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी, अब स्क्रीन में 10 बॉक्सेस, इस वाले बॉक्स में 3rd नंबर वाले बॉक्स में ये लिखना है, फिर उसके बाद अगली स्क्रीन, फिर अगली स्क्रीन, ये दबाएंगे ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये खुलेगा, करते हुए फिर यार इतने सारे बॉक्सेस हैं उनमें क्या लिखना है, आप सब वो मुझे वो आप मुझसे मत पूछो, ठीक है। तो बैंकिंग में भी ये फायदा हुआ कि बैंकिंग में फिनाकल कितनी मोटी हो पाती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की। तो थोड़ा सा सपोर्टिव थे मेरे ब्रांच मैनेजर, तो हर चीज़ के मैं सिनेरियोज बना बना के प्रैक्टिस करता रहता था। 3-4 महीने में मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट टाइप का हो गया कि हाँ कुछ भी है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो वो मेरे लिए अच्छा टाइम था बैंक का, काफ़ी तवज्जो मिलती थी, आसपास के ब्रांच मैनेजरों से भी बड़ी तवज्जो मिलती थी, पार्टीज भी मिलती थी, प्रॉब्लम सॉल्व करो उनकी। तो इस हिसाब से मतलब दैट वाज अ गुड टाइम। I'll take one more question, last question. इसको पूछना है। I'll ask a question. So first of all, I want to pay my regards to you and your fraternity because I know how tough a job it is. And you guys help us in conserving and maintaining the forest, and it actually maintains the ecological balance, which is very important for human survival. So thanks to you. Another question which I have is you have different zones in which you get posted. So when you get posted in a wildlife zone where the zone is too much wildlife is there, so what accountability you guys hold in maintaining that that sort of environment, and how do you deal with that environment once you reach into such a zone from where there is no wildlife and then you reach to a zone where is so much of species? From starting from zero when there is no wildlife, Yeah. and building up a population, Yes. that is actually task. और उसमें फर्क ये पड़ जाता है कि
बिकॉज फॉरेस्ट आर रिसोर्सेज जो एकदम से दीज आर ओपन रिसोर्सेज, ठीक है, एक तरीके से दे आर एक्सेसिबल टू मोस्ट, कोई कहीं से भी घुस जाए, और इतने वास्ट स्केप्स ऑफ फॉरेस्ट है, लैंड है, कौन कहाँ से घुस रहा है, ठीक है, विल नेवर नो, ठीक। और इनको जब हमको प्रोटेक्ट करना है और इनको जब हमको बचाना है तो विजिलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या होती है कि फॉरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स दैट यू सी इज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि इवन आफ्टर ईयर्स यू कैन ट्रैक डाउन एनीथिंग कि एक पर्टिकुलर लॉग किस पॉइंट से किस पेड़ से जो कटा होगा तब वो लॉग निकला होगा, अगर सिर्फ नंबर से उसके ट्रैक हो सकता है, ठीक है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है फॉरेस्ट। अब लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि एज एंड व्हेन जब से ये वाली है कि जो एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रेशर्स जब से बढ़ने लग गए हैं, और जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लैंड रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं चारों तरफ जो है, तो अब उन्हें भी कोई ना कोई रिसोर्स तो चाहिए, एटलीस्ट लैंड तो चाहिए, भले उस पर खड़े हुए फॉरेस्ट नहीं चाहिए, वाइल्ड लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीन तो चाहिए। तो उस हिसाब से, और दूसरा वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद बहुत लेवल तक तो ख़त्म हो गया, ठीक है, उसमें कुछ रेयर इंसिडेंट्स रहते हैं, खासकर टाइगर वगैरह के। अब इनफैक्ट टाइगर पोचिंग वगैरह एमपी में तो बहुत वैसी नहीं रह गई है, और उसमें भी ये है कि ये किसी छोटे मोटे एनिमल को बुश मीट के लिए अगर कैप्चर करना चाहते हैं, तो वाइल्ड बोर वगैरह होते हैं, तो वाइल्ड बोर वगैरह के लिए जो फंदे लगते हैं उसमें कभी टाइगर ट्रैप हो गए या लेपर्ड ट्रैप हो गए। और कई केसेस हम लोग वाइल्ड लाइफ एरियाज में ये भी देखते हैं कि जहाँ पे खेती वगैरह हो रही है, जैसे स्पिल ओवर पॉपुलेशन जो है टाइगर्स वगैरह की, ट्रांजिएंट मूवमेंट है किसी टेरिटोरियल एरिया में, वाइल्ड लाइफ नॉन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में, उससे बाहर, तो ट्रांजिएंट मूवमेंट है, तो वहाँ अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए फ्रॉम रेडिंग बाय वाइल्ड पिग्स और हार्बिवोर्स से अपनी क्रॉप को बचाने के लिए क्या करते हैं, कई बार वायर जो है वो जो जीआई वायर है वो जीआई वायर से लगा के उसके चारों तरफ एक फेंसिंग कर देते हैं। अब उसमें वो लाइव वायर जो रहती है उसमें अब वो थोड़ी ना देख रही है कि कौन सा एनिमल चिपक रहा है, तो कई बार टाइगर्स वगैरह उस वजह से डेथ जो है, तो जनरली आजकल की डेथ्स ऐसी हैं, एक तरीके से पोचिंग वाली जो एक्सक्लूसिव डेथ्स हैं दे आर वेरी लेस नाउ, ठीक है, खासकर मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दी एमपी में अब थोड़ा सा बहुत कम है। और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्या है कि जो हमारे इकोसिस्टम है या इकोलॉजी है, जिस इकोलॉजी में एवरीथिंग इज सेल्फ रेगुलेटेड, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि बहुत इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बस ये है कि अगर आपने कोई एक एस्पेक्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवीन करके या बहुत ज़्यादा उसे ख़त्म कर दिया किसी तरीके से, तो वो जो साइकिल बिगड़ती है ना, दैट हैज़ अ वेरी डिलीटीरियस इफेक्ट, ठीक है। आप सडनली ये देखोगे कि कई बार अगर प्रे जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है अगर प्रेडेटर की पॉपुलेशन कम हो, ठीक है, मान लीजिए कि टाइगर के नंबर्स किसी एरिया में कम हो गए, तो उसकी जो प्रे बेस है वो प्रे को वो रेगुलेट करता है, ठीक है, और तो एक जो उस जगह का कैरिंग कैपेसिटी है उस हिसाब की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए टाइगर्स कम हो गए, खत्म हो गए, प्रे बढ़ेंगे, अब वो प्रे हर्बीवोर्स जो बढ़ेंगे वो सराउंडिंग एरिया में डिफ्यूज होंगे क्योंकि वहाँ उनके लिए रिसोर्सेज उतना नहीं है, फिर वो क्रॉप रेडिंग बढ़ेगी एडजॉइनिंग एरिया। मान लीजिए प्रे आपके बहुत कम हो गए क्योंकि आपने क्या किया कि आपने जो वेजिटेशन है या फॉरेस्ट है उसको आपने काट के नुकसान पहुंचाया, तो अब आपका जो प्रे बेस है वो कम हो गया, तो नाउ द प्रेडेटर विल मूव इनटू द एडजॉइनिंग एरियाज, लाइवस्टॉक किल करेगा और वहाँ पे कभी ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट होता है तो वो कंफ्लिक्ट आएगा। तो यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। प्रोटेक्टेड एरिया में आप वर्ल्ड से ही जाओ ना, जब भी हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं जो टाइगर रिजर्व्स हैं, मतलब नेशनल पार्क, सैंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व, दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज जो वाइल्ड लाइफ के लिए स्टिपुलेट किए गए हैं, इन प्रोटेक्टेड एरियाज में द मेन एम इज जस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक काम है, प्रोटेक्शन, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम हैबिटेट इम्प्रूवमेंट की और उसकी कुछ बात करते हैं तो ओवर द टाइम क्या होता है कि सक्सेशन की वजह से जो ग्रास स्पीशीज और
फॉडर जो रहता है फॉर हर्बीवोर्स, वो फॉडर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। फिर एडजॉइनिंग एरियाज में कहीं खेती हो रही है तो वहाँ से वीड्स वगैरह आ गए, तो वीड्स बड़े प्रोलिफरेट कर गए, तो आपने उनको वीड्स को, क्योंकि उससे तो कोई कंज्यूम नहीं करेगा, वो वीड्स को आपने हटाया और वहाँ पे आपने ग्रासिंग की। तो वाइल्ड लाइफ एरियाज में इंटरवेंशन ऐसे ही होते हैं जहाँ थोड़ा ग्रासलैंड मैनेजमेंट करते हो, प्लस एडेड आप थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट करते हो। जैसे आपने लीन सीजन के लिए कुछ एरियाज में स्पेसिफिकली वाटर होल्स वगैरह बना दिए। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिर्फ इतना है, प्लस एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ एरियाज में आप हार्वेस्ट नहीं करते, आप ट्री कटिंग नहीं करते, आप इसीलिए कुछ ले नहीं जा सकते। ये जो स्टिपुलेट किया गया है कि नथिंग कैन बी टेकन आउट फ्रॉम देयर, ठीक है, नथिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो जब तक आप ये परमिशन नहीं लेते, कई बार ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फॉरेस्ट पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने वो कॉर्बेट वाला केस तो देखा ही होगा, ठीक है, बड़ा चर्चित केस है, उसमें राइट फ्रॉम द मिनिस्टर मैंने एफएस ऑफिसर्स वो सब वो हो गए। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो इनका एक वो था रेस्ट हाउस था, उसमें 2 कमरे एडिशनल बना दिए विदाउट टेकिंग दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत जो परमिशन मिली है, डाइवर्जन यूसेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर अ नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, वो किए गए। सो अपना जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छा है फॉरेस्ट का, बस ये है कि जो ये सारे ऑफेंसेस हैं जो ये नीचे वाले जो पेटी हैं, वो पेटी में थोड़े से हैं, तो उस वजह से उनका जितना एक वो वाला इफेक्ट रहता है ना, ग्रेविटी का, ग्रेविटी, और हाँ मतलब उसमें वो वाला जो इफेक्ट खत्म हो जाता है कि भाई वो थोड़ा सा आपको रोक देगा, डेटरेंट बहुत कम रहता है। अदरवाइज आप बाकी ये देखें कि अगर डेटरेंस थोड़ा सा बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है कि वो है, और फॉरेस्ट और इन एरियाज में ही अपने आप रीजनरेट हो जाता है, इनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस करने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर आप ओवरऑल वर्क प्रोफाइल भी देखें तो इस समय मेजॉरिटी यही होता है, आपको 50,000 पौधे लगाने हैं तो 50,000 पौधे लगाने का कोई कॉस्ट नहीं है, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे फेंस करने का बहुत बड़ा कॉस्ट मेजॉरिटी उसी में चला जाता है। तो अगर कम्युनिटी खुद आगे खड़ी होगी भैया हम इसे नहीं करेंगे, हम यहाँ मवेशी नहीं चराएंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो वो आप ये सोचिए कि उस समय अगर ये वाला मोड आ जाए तो फिर उसके बाद आपको प्लांटेशंस वगैरह करके जो आपने डिग्रेडेड एरियाज हैं तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में समय नहीं लगता, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि वहाँ पे प्रोटेक्शन हैम्पर करता है क्योंकि बजट इतना एस्केलेट हो जाता है उस चीज़ का, तो वो होता है। वरना अगर आप फॉरेस्ट का वो देखें कि हमारा सक्सेस रेट कैसा रहता है, तो इसके लिए मैं 2 इंस्टेंस दूंगा। पहला इंस्टेंस तो ये है कि हमारे यहाँ 50% सर्वाइवल रेनफेड कंडीशन में होता है, मतलब हमने जितने पौधे लगाए हैं रेनफेड, हम इरिगेट नहीं करते उनको, हमको सिर्फ प्रोटेक्ट करना है वो करना है, तब भी हमारा अल्टीमेटली उसमें भी वो है कि वो प्रोटेक्ट कहाँ हो पाते हैं, कहीं इधर से तोड़ दिया, अब इतने बड़े बड़े एरिया में चौकीदार इधर घूम रहा है, वो उधर से तोड़ के मवेशी घुसा दिए उधर कर दिया, तो दैट वे अल्टीमेटली क्या होता है, फिर भी गिविंग अ 50% सर्वाइवल रेट, तो वो तो बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब 50% कोई और वो दे के देगा, दैट द कॉस्ट इनकर्ड इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने पौधा लगाया है या आपने लगवाया है तो उस चीज़ वो बड़ा हो गया, उससे ज़्यादा खुशी कोई चीज़ नहीं देती एक्चुअली, अ वेरी वेरी डिफरेंट फील, मतलब आप एक पौधे को ही लगाओ और उसे वो करो वो बढ़ जाए, तो द काइंड ऑफ फीलिंग यू हैव ना, वो जॉय जो है, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। और जब ये है, इसमें हमारा कॉस्ट भी ऑलमोस्ट 1/3 है बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में, डिपार्टमेंट्स ऑल्सो फाइंड, और सर्वाइवल हमारा 50% वो बहुत है। और आप उसका दूसरा इंस्टेंस ऐसे देख सकते हो कि द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर इज हैविंग ऑन फॉरेस्ट, और लगातार जैसे फॉरेस्ट कवर और यहाँ कटाई हो गई, वहाँ हट गया, ये साफ सफाई कर दी गई, इस टाइप की बातें आती रहती हैं। और अल्टीमेटली आप ये देखो कि जब हमारी जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, बायनियल आती है 2 साल में, अगर उसमें फॉरेस्ट कवर मेंटेन हो पा रहा है तो ये कंट्रीब्यूशन आ कहाँ से रहा है, इट इज दीज प्लांटेशन दैट वी हैव मेड। तो कई बार ये सवाल होता है कि आप करोड़ों पौधे प्लांट्स लगाते हो तो फॉरेस्ट कवर बढ़े क्यों नहीं,
बढ़ इसलिए नहीं रहा है कि वो एक्चुअली आपको उसी को बैलेंस आउट जो है उसी को बैलेंस आउट कर पा रहा है. ये गनीमत है कि हमारा स्टेटस को तो मेंटेन हो पा रहा है. अदरवाइज ठीक है, मान लीजिए प्लांटेशंस भी वैसे ही फेल हो जाते हैं पूरी तरीके से, और इधर से भी जो कई डिलीटीरियस इफेक्ट हैं, तो अल्टीमेटली आपका फॉरेस्ट कवर का स्टेटस को तो मेंटेन नहीं हो. इस टाइप का है. और फॉरेस्ट में वही है, मैंने एक चीज़ कही, आपने कोई पौधा लगाया वो तुरंत तो मैच्योर होगा नहीं. ठीक है, फॉरेस्ट में एक्चुअली मोटिवेशन में शुरू भी कह रहा कि फॉरेस्ट में मोटिवेट रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि मोटिवेशन क्या है, कोई चीज़ आपने करी, उसके आपको रिजल्ट्स पता चल गए, यार पॉजिटिव है, यार यू आर मोटिवेटेड, आई डू इट अगेन. ठीक है, या नेगेटिव है तो आपने कुछ सुधार करके फिर ट्राई किया, बार बार नेगेटिव आ रहे हैं, देन यू चेंज कोर्स कि भाई ये नहीं हो पा रहा है, अपन दूसरा कुछ करें. ठीक है, फॉरेस्ट में आज लगाया, हम लोग अपने करियर में नहीं देख पाते हमारे लगाए हुए प्लांटेशन. हाँ एक्चुअली सही, मतलब रिजल्ट हम नहीं देख पाते. ठीक है, आज मैंने कई प्लांटेशन जो लगवाए हैं, जो मेरे टाइम पे लगे हैं, जिन पे मैं गया हूँ, उन प्लांटेशंस को जब हम ये सब्सिक्वेंटली प्रोबेबली जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तब ये स्टोरीज बनाऊंगा मैं कि यार वो वाला प्लांटेशन, तो उस समय जो डीएफओ होगा मैंने उसको फ़ोन किया करूँगा और उससे ये कहूँगा कि यार मैंने उस समय अपने टाइम पे लगवाया था, उनके क्या हाल है उन प्लांटेशन से. ठीक है, इसी टाइप के हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि मैंने वो अपने टाइम पे लगवाया था, क्या हाल है. बिकॉज so there where the results are not instantaneous, how you can keep yourself motivated, so that is one of the major challenges. और थोड़ा सा अभी तो ये भी है कि आप लोग लॉ वाले लोग हैं, तो एक तो ये भी था कि अभी जो अपना आईपीसी एनसीआरपीसी में जो अमेंडमेंट्स हैं, उसमें ये है कि हमारा जो फॉरेस्ट का स्टेटस है वो हम लोग कंप्लेन केसेस ही फाइल करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो लेवल है इट इज इक्वल टू अ कॉमन मैन. यू कैन आल्सो फाइल अ कंप्लेंट केस, वी आल्सो फाइल अ कंप्लेंट केस. सो दैट वे मतलब थोड़ा सा ये है कि एक डिटरेंट तो यही हो सकता है कि वी शुड बी फाइलिंग चार्जशीट्स, मतलब इन्वेस्टिगेशन का और इन सब का जो है, तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा. मतलब दैट विल गो अ लॉन्ग वे, थोड़ा सा फॉरेस्ट जूरिस्प्रूडेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए. यार कोर्ट्स हमारे लिए तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और किसी भी लेवल पे हो, मतलब वो क्या ग्रीन जुडिशरी, ग्रीन बेंचेस, कमिंग अप ऑफ ग्रीन बेंचेस, हाउ दे हैव हेल्ड द फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, तो वो काफ़ी रहा. अभी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो थी सुप्रीम कोर्ट की, नाउ दे हैव गिवन इट अंडर द मिनिस्ट्री ओनली. अभी आजकल भी तो ये है. Sir, thank you so much. I think we enjoyed a lot. Okay. मुझे लगा थोड़ा सा क्या है स्टार्टिंग वही होगी, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे. नहीं स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होता है क्योंकि यंग माइंड्स है ना, बट टेक सम टाइम टू सेटल डाउन इन अ रिदम, एंड फिर हम एक बात करेंगे. एनी सजेशन दैट यू हैव फॉर अस? ब्रिज मतलब इट्स अ नाइस कांसेप्ट. ठीक है, और ये है कि जाहिर सी बात है, दीज आर द टाइम्स वेयर यू रिक्वायर गाइडेंस द मोस्ट. गाइडेंस पर से नहीं कहेंगे, बस ये है कि इस टाइप के जो लाइफ एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करने का प्लेटफॉर्म देते हैं, तो लाइफ एक्सपीरियंस विल बी हैप्पी कि किसी को भी बेनिफिट मिल जाए, सो विल बी वेरी हैप्पी. और कभी भी किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी तरीके की, ठीक है, तो आई एम ऑलवेज देयर. और अभी मैं डीएफओ ग्वालियर हूँ, मैं कहीं और भी डीएफओ रहा या किसी वाइल्ड लाइफ एरिया में भी रहा, यू आर मोस्ट वेलकम. और चीता वाला प्रॉमिस तो अभी मैं नहीं कर सकता because it is now keeping our fingers crossed. It is in fact not allowed even for us officers also. अभी थोड़ा सा उस टाइप का है, but that project is also a good project. It will succeed. So I was actually thinking of asking you that question, but then ये चीता कॉफी टेबल के लिए रिजर्व करके रखा था. वो तो आई वाज हैप्पी. ये इन्होंने मतलब मैंने जो बताया उसके बारे में उसका एक अच्छा आउटकम निकल गया. अच्छा बता रहे थे कि जैसे साहब ने जो उसके बाद एक किसी वो पीआई लगा, बट मैं कैमरा पे नहीं बोल रहा, इसको क्लोज कर दो फिर आइए सर.